today's webinar on Form DPT3, CFSS form and relaxation by MCA. And on this subject, our very learned Company Secretary CS Divesh Goyalji is with us. As Divesh Goyalji is not a new to our study circle, he always coming to our study circle to apprise us. I also welcome Jagjit ji, Sunil Dhamija ji, Hemant Pavaji, Rajiv Kohli ji, and all the attendees on behalf of Pusa Road CP Study Circle. To introduce briefly CS Divesh Goyal ji, he is a fellow member of Institute of Company Secretary of India, having intense expertise in corporate law for the last 8 years. He is a young and progressive practicing company secretary with zeal to dig deep into the nuisance of corporate law. Being a researcher at heart, he has done meticulous research and has penned various articles on the Companies Act 2013 to keep at pace with the latest changes and critically dissect the implication of various provisions of the new act. He has co-authored the Company Law Premier book published by the Institute of Company Secretary of India. He has also added a lot to the issuance of various guidance note by ICSI. He was a member of the Task Force Committee and Research Committee for last 3 years. He is a member of various committee of the NIRC of ICSI. His articles have been published in ICSI magazine and are available on various popular websites relating to corporate law. He has deliberated at several forums on corporate law throughout the country. Over the last 2 years, he has deliberated for more than 150 seminars and penned approximately 700 articles on multiple topics of corporate law. This is the brief introduction of today's speaker. I once again welcome you, sir, and welcome again Divesh Goyal ji, and over to you, sir. Thank you so much, Rajesh ji. Thanks for the love जो प्यार मिल रहा है पुसा रोड स्टडी सर्कल से since last I think 3 to 4 year मैं connected हूँ पुसा रोड स्टडी सर्कल से आपसे. So definitely एक मजा आता है पुसा रोड स्टडी सर्कल में सेशन करने का, चाहे हमने फिजिकल सेमिनार्स किए हों या अब हम वेबिनार्स कर रहे हैं. डेफिनेटली अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम फिजिकल कर पाए, but I'm missing those days जब हम फिजिकल सेमिनार भी वहाँ क्या करते थे. So hope the situation will be fine soon and we will again come on the stage with the physical seminars. So definitely आपसे कंटिन्यू बेस पे रेगुलर बेस पे जो आपके एफर्ट्स है, जो आपसे प्यार मिलता है, वही चीज है जो हमें खींच लाती है बार-बार स्टडी सर्कल की तरफ कि जब भी आप पूछते हैं, I'm always ready for the स्टडी सर्कल के yes any topic I'm always ready. सर. So जैसा कि कंपनीज एक्ट की हम बात करें, कंपनीज एक्ट की जो हम टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक करंट मंथ के लिए जून के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एमसी ने क्या क्या रिलैक्सेशन दी है अभी कंपनीज एक्ट में. उसके साथ वी विल गोइंग टू डिस्कस द डीपीटी 3 फॉर्म एंड सीएफएसएस. आई हैव पर्सनली फेस कि लास्ट 15-20 डेज में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है प्रोफेशनल्स की, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या कंपनी सेक्रेटरीज. मोस्टली क्वेरीज आर रिलेटेड टू द डीपीटी 3 फॉर्म से रिलेटेड है या सीएफएसएस से. बिकॉज जनरली क्या होता है, जब किसी चीज की ड्यू डेट आ जाती है तो वी ऑल स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस थिंग्स. तो कुछ नई क्रिटिकलिटीज आती है, इश्यूज आती है, तो रेगुलर बेस पे बहुत सारी क्वेरीज डीपीटी 3 और सीएफएसएस पे मेरे पास आ रही है. सो टुडे इन दिस वेबिनार वी विल try to discuss all such queries, or even I would like to say अगर किसी की कोई भी क्वेश्चन है, किसी का कोई भी क्वेरी है, प्लीज साइमल्टेनियसली आप चैट बॉक्स में क्वेरी बॉक्स में लिखिए सो दैट हम उन क्वेरीज को भी डिस्कस कर लें. बिकॉज राजेश जी जो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं वेबिनार्स हमारे लिए ऑर्गेनाइज करने के, इनका एक सिंपल मोटो है कि जो भी टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, एटलीस्ट जितने भी मेंबरों से अटेंड कर रहे हैं, सबका उस टॉपिक पे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. एवरीवन मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट टॉपिक. So that is all about today's session. So let me start with today's first topic. First, we will start with the discussion on the relaxation under Companies Act. कि Companies Act में relaxation क्या है? कितनी relaxation Companies Act में हमें मिली है जो अभी pandemic situation के कारण. So relaxation की बात करते हैं. You all are aware कि recently सभी ministries ने relaxation दी है. हमें इनकम टैक्स में भी काफी सारे ड्यू डेट्स पे रिलैक्सेशन मिली थी, जीएसटी में भी, सेबी में भी, आरबीआई ने भी कुछ थोड़ी बहुत दी है. एंड सेम ऑन द सेम लाइन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कंपनी लॉ और एलएलपीज में भी कुछ रिलैक्सेशन दी है. हाउएवर जो इस साल हमें रिलैक्सेशन मिली है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दोज आर नॉट अप टू द मार्क लाइक लास्ट ईयर रिलैक्सेशन. लास्ट ईयर तो हमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिली थी कंपनीज एक्ट में,
डेफिनेटली दिस ईयर हमें उतनी ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिली है, बट थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हमें इस साल भी मिली है कंपनीज एक्ट में। लास्ट ईयर तो हमें CFSS स्कीम मिली थी, जिसका फॉर्म अब 30 जून तक जाना है, जिसपे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर बहुत सारी और भी रिलैक्सेशन आई थी, बट दिस ईयर देयर इज नो सच रिलैक्सेशन लाइक दैट। बट जो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन आई है, हम उनका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, all those things we are going to discuss today in this webinar. So 3rd May को approximately 1 month before 3rd May को मिनिस्ट्री ने 3 सर्कुलर पास किए थे, 3 अलग अलग रिलैक्सेशन दी थी। कुछ रिलैक्सेशन बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग थी मिनिस्ट्री ने, कुछ रिलैक्सेशन जो मिनिस्ट्री ने दी वो एडिशनल फीसिस फॉर्म पे ना लगे उसमें वेवर दिया, कुछ रिलैक्सेशन फॉर्म फाइलिंग के टाइम को इंक्रीज करके दिया। तो लास्ट 3rd May को जो रिलैक्सेशन आई, मिनिस्ट्री ने 3 सर्कुलर और 3 डिफरेंट रिलैक्सेशन इशू किए। हम वन बाय वन हम रिलैक्सेशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग। As per Companies Act, every company is required to hold at least 4 board meetings. Every company is required to hold at least 4 board meetings in a calendar year. एक कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग होना मैंडेटरी है अंडर कंपनीज एक्ट। अब पहले कुछ भी डिस्कस करने से पहले, एज on the regular basis I'm doing session with a Pusa or study circle, तो all must be aware कि मेरे सेशन with full of question answers रहते हैं। तो इस रिलैक्सेशन को डिस्कस करने से पहले I have one question for all of you. कंपनीज एक्ट में क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी है या नहीं है? नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो बोला नहीं है। एनी अदर व्यूज कि क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी है क्या? क्योंकि हमें 4 बोर्ड मीटिंग एक कैलेंडर ईयर में करनी है, तो क्या हमें क्वार्टर बेस पे भी ध्यान रखना है या क्वार्टर बेस पे ध्यान नहीं रखना है? तो ये क्वेश्चन ऑलवेज कंफ्यूजन का रहता है कि कंपनीज एक्ट में क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग करनी मैंडेटरी है या नहीं है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आंसर्स आए हैं, उसमें से 4 है कि यस मैंडेटरी है। किसी और को और कोई व्यू कि मैंडेटरी नहीं है या क्या इस प्रोविजंस है? तो मोस्टली व्यू आर इन द फेवर ऑफ यस, वन मोर इज नो। तो मोस्टली व्यू जो हमें मिले हैं वो नो है कि कंपनीज एक्ट में क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी नहीं है। सॉरी, मोस्टली हमें यस मिले कि मैंडेटरी है। बट जब हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस की बात करते हैं ना, बोर्ड मीटिंग के लिए हमें 2 प्रोविजंस चेक करने पड़ते हैं। एक हमें चेक करना पड़ता है सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और सेकंड हमें चेक करना पड़ता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। जब हम सेक्शन 173 को सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के साथ रीड करते हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 173 को एक साथ रीड करने पे वी विल फाइंड आउट कि कंपनीज एक्ट में कहीं भी प्रोविजन नहीं है क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग का। कंपनीज एक्ट में क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग करने के लिए कहीं भी प्रोविजन नहीं है। कंपनीज एक्ट हमें बोलता है कि हमें ईयरली 4 बोर्ड मीटिंग करनी है एक कैलेंडर ईयर में। मैक्सिमम गैप 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में जो है वो 120 दिन का हो सकता है। तो जो एक्ट ने बोला कि 4 बोर्ड मीटिंग कैलेंडर ईयर में करना मैंडेटरी है, और चारों बोर्ड मीटिंग में जो मैक्सिमम गैप 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में है वो 120 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैक्सिमम गैप 120 दिन से ज्यादा का होगा तो वो कंपनीज एक्ट का नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। दिस इज द प्रोविजन। अब इसका इशू क्या था? अगर आपके 120 दिन अप्रैल में या मई मंथ में कवर हो कंप्लीट हो रहे थे, तो हमें पता है अप्रैल मंथ मोस्टली और मई मंथ कंप्लीटली लॉकडाउन रहा है थ्रू आउट द कंट्री। तो ऐसी लॉकडाउन सिचुएशन में इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल फॉर ऑल द कंपनीज कि वो अपनी बोर्ड मीटिंग फिजिकली बुला पाए या बोर्ड मीटिंग कन्वे कर पाए। एज वी नो कि पेंडेमिक के कारण many person got infected from the COVID also, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी कि पॉसिबल भी नहीं था बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए। तो मिनिस्ट्री ने रिलैक्सेशन दिया कि आपकी बोर्ड मीटिंग में मैक्सिमम गैप जो 120 दिन हो सकता है। अगर आपके 120 दिन 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच फॉल कर रहे हैं, if 120 days of holding a board meeting is falling between 1 April to 30 September, देन आप 120 दिन की जगह 180 दिन में भी अपनी बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं। एग्जांपल, लास्ट बोर्ड मीटिंग अगर मेरी 1 दिसंबर 2020 को हुई थी, तो मेरे 120 दिन जो कंप्लीट होते हैं वो 31 मार्च को कंप्लीट हो जाते हैं, और मेरा सर्कुलर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो अगर 1 अप्रैल से पहले मेरे 120 दिन कंप्लीट हो गए हैं तो मुझे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। हाँ, ये हो सकता है कि 31 मार्च को मेरे 120 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, वहां तक तो मैं एक बोर्ड मीटिंग कर चुका हूँ, नेक्स्ट मेरे को करने के लिए 180 दिन का गैप मिल जाएगा।
बिकॉज जो रिलैक्सेशन है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के लिए है। जो रिलैक्सेशन हमें मिली है काफी लॉन्ग पीरियड के लिए मिली है। अब इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरी लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी 15 दिसंबर को, मेरे 120 दिन कंप्लीट होते हैं 14 अप्रैल को। अगर मैंने 14 अप्रैल को मीटिंग नहीं की थी तो मैं उसमें 60 दिन और ऐड करके 14 जून तक अपनी बोर्ड मीटिंग कर सकता हूँ। ये एक प्रॉपर कंप्लायंस माना जाएगा कंपनी लोगों का। तो जो फर्स्ट रिलैक्सेशन दी मिनिस्ट्री ने हमें दी कि आपको बोर्ड मीटिंग 120 दिन में आप 180 दिन के गैप में भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 120 डेज फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू लेकर 30 सितंबर तक। सिर्फ इस पीरियड के लिए हमें 180 दिन का ये रिलैक्सेशन दी गई है। किसी और पीरियड के लिए हमें रिलैक्सेशन ये 180 दिन की नहीं दी गई है। तो इसका रिलैक्सेशन के लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आपके 120 दिन 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में फॉल करने चाहिए। अगर आपके 120 दिन 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2021 के बीच में फॉल कर रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट रिलैक्सेशन गिवन बाय द मिनिस्ट्री। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो ना प्लीज साइमल्टेनियसली आप लोग पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी तो बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं, तो व्हाई मिनिस्ट्री हैव गिवन द रिलैक्सेशन फॉर द टाइम गैप? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब हम बोर्ड मीटिंग करते हैं ना, हम सबको पता है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग करने की बात आती है तो कुछ एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। डायरेक्टर्स को टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज होना जरूरी होती है। तो ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि उन एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस को कर पाए, या वी कैन नॉट से कि सभी डायरेक्टर्स अवेयर है टेक्नोलॉजी से। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिस रीजन से हम अपनी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हर कोई नहीं कर पाता है। ये कुछ रीजन है कि बोर्ड मीटिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर पाते हैं। इस रीजन से मिनिस्ट्री ने रिलैक्सेशन दिया। इस रीजन से मिनिस्ट्री ने रिलैक्सेशन दिया कि आप 120 दिन की जगह 180 दिन में भी अपनी बोर्ड मीटिंग कर सकते हो। और जब हम बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते हैं ना, कुछ रिस्ट्रिक्टेड मैटर्स है कि हम उन मैटर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बोर्ड मीटिंग में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जब हम रिस्ट्रिक्टेड मैटर्स की बात करते हैं लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल आप बोर्ड मीटिंग के थ्रू नहीं कर सकते हो। डिविडेंड डिक्लेरेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऐसे टास्क को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर सकते हो। ऐसे टास्क के लिए आपको फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। पर लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ने कुछ एक रिलैक्सेशन दी थी। लास्ट ईयर उस रिलैक्सेशन में मिनिस्ट्री ने लिखा, लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ने जो रिलैक्सेशन दी उसमें मिनिस्ट्री ने क्या लिखा कि आप अपनी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हो, आप रिस्ट्रिक्टेड मैटर भी डिस्कस कर सकते हो, बट वो रिलैक्सेशन एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए है और वो रिलैक्सेशन हमें मिली हुई है अभी 30 जून तक। तो लास्ट ईयर से चलती आ रही है और ये रिलैक्सेशन हमें 30 जून तक अभी अवेलेबल है। तो अगर 30 जून तक अगर आप अपनी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जो मर्जी एजेंडा आप डिस्कस करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट 1 जुलाई से आप पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि जो रूल 4 के रिस्ट्रिक्टेड मैटर्स हैं आप उनकी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर पाओगे। तो अगर किसी को हमें सजेस्ट करना है, किसी क्लाइंट को या गाइड करना है, तो हम ये गाइड कर सकते हैं कि आप 30 जून तक तो अपनी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो, बट 30 जून के बाद आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर करते हो तो आपका 30 जून के बाद अगर आप करते हो तो आपको रिस्ट्रिक्टेड मैटर डिस्कस नहीं कर पाओगे। दिस इज द फर्स्ट रिलैक्सेशन गिवन बाय द मिनिस्ट्री। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ देयर इज अ वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम टाइम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग? मिनिमम टाइम गैप का कोई प्रोविजन नहीं है। आप सेम डे भी जितनी मीटिंग्स करना चाहो कर सकते हो कंपनीज एक्ट में, एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी। 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस बोलते हैं कंपनी हैव टू होल्ड एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर, और दोनों बोर्ड मीटिंग में मिनिमम गैप 90 दिन होना चाहिए। तो अगर स्मॉल कंपनी की बात करूं वहां तो मिनिमम गैप की 90 दिन की बात होती है उस कंडीशन में जहां आप सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग कर रहे हो। पर अदर केसेस की बात करूं तो कंपनी लॉ में मिनिमम बोर्ड मीटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। पर्सनली आई हैव सीन कि कंपनीज ने 10-10 मिनट के गैप पे 3 या 4 बोर्ड मीटिंग्स किया डिफरेंट एजेंडास के लिए। तो इट इज पॉसिबल अंडर कंपनीज एक्ट। मिनिमम टाइम गैप का कोई प्रोविजन नहीं है बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग। This is the first relaxation given by the Ministry of Corporate Affairs. अब जो सेकंड रिलैक्सेशन दी वो हमारे लिए थोड़ी ज्यादा यूजफुल है, दैट इज रिलेटिंग टू द एडिशनल फीस फॉर फाइलिंग ऑफ द फॉर्म। सबसे बड़ा टास्क क्या आता है, हमें पता है कि लाइक इनकम टैक्स और जीएसटी की तरह बहुत सारी ड्यू डेट्स हमें यहाँ भी फॉलो अप करनी पड़ती है कि जीएसटी की तरह यहाँ पे भी हमें बहुत सारी मिनिमम ड्यू डेट्स फॉलो करनी पड़ती है।
और पहले क्या होता था, जब हम ओल्ड कंपनीज एक्ट की बात करते हैं ना, तब हमें साल में जाके अक्टूबर नवंबर में फॉर्म्स फाइल करने पड़ते थे, उससे पहले कोई फॉर्म्स होते नहीं थे, तो हमें कोई इशू नहीं था। बट अब जो कंपनीज एक्ट में रिसेंटली लास्ट 4-5 सालों में जो अमेंडमेंट्स आए हैं ना, कंप्लायंस बहुत इंक्रीज हो गया है। नाउ हमें क्वार्टरली भी फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, हाफ ईयरली भी करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म हमें फाइल करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी ड्यू डेट हमारी फॉल करती है। तो सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि हमें उन ड्यू डेट्स के बाद अगर हम फॉर्म फाइल करते हैं तो हमें एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है। तो एवरीवन वांट्स कि हमें एडिशनल फीस पे रिलैक्सेशन मिले, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ने बोला, एज पर दिस सर्कुलर, एक नया सर्कुलर आया, इफ ड्यू डेट ऑफ एनी फॉर्म, फोकस ऑन द वर्ड, उन्होंने लिखा एनी फॉर्म एक्सेप्ट CHG 1, CHG 4 और CHG 9। उन्होंने बोला इन 3 फॉर्म को छोड़ के एनी फॉर्म जो 1 अप्रैल से 30 मई के बीच में अगर फॉल करते हैं, then those form can be filed without additional fees till 31st जुलाई। तो वो फॉर्म विदाउट एडिशनल फीस के बिना 31 जुलाई तक फाइल हो सकते हैं। अगर आपका कोई फॉर्म है जिसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल से 30 मई के बीच फॉल करती है, इसको हम 31 मई रीड करेंगे, 31 मई 2021। अगर आपका ऐसा कोई भी फॉर्म है जिसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल से 31 मई 2021 के बीच फॉल करती है, आप उसको 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हो, आपको कोई एडिशनल फीस नहीं देनी पड़ेगी। जब ये सर्कुलर आया, बहुत अच्छा सर्कुलर था, एवरीबॉडी क्लियर विद द सर्कुलर कि हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल गया है, हमें रिलैक्सेशन मिल गई है। बट सडनली मिनिस्ट्री ने ना इस सर्कुलर को घुमा दिया। सडनली व्हाट दे हैव डन, उन्होंने इस सर्कुलर में बहुत क्लियरली लिखा एनी फॉर्म, और सर्कुलर में उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा कि ये सर्कुलर LLP एज वेल एज कंपनीज दोनों पे एप्लीकेबल होता है। तो सर्कुलर में उन्होंने लिखा एनी फॉर्म, और सर्कुलर में लिखा कि ये सर्कुलर कंपनी एज वेल एज LLP दोनों पे एप्लीकेबल हो जाता है। बट सडनली ऑन 13th मई, 3 मई को रिलैक्सेशन आया, एवरीवन वाज रिलैक्स कि मिनिस्ट्री ने बहुत कुछ रिलैक्स कर दिया है 2 महीनों के लिए। 13th मई को मिनिस्ट्री सडनली एक सर्कुलर लिस्ट लेके आई कि ये सर्कुलर तो सिर्फ 10 फॉर्म्स के लिए है। हाउ कैन दे डू सो? पहली चीज सर्कुलर में उन्होंने लिखी LLP प्लस कंपनी दोनों कवर है, और उसने लिखा एनी फॉर्म। यहाँ पे उन्होंने 10 फॉर्म दिए, इनमें LLP भी कवर नहीं की, और 10 भी ऐसे फॉर्म दिए जो हमें रेगुलर बेस पे जिनकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट फिर बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन हुई, बहुत सारे लेटर लिखे गए मिनिस्ट्री को, उनके बेस पे एक एक करके 5 बार लिस्ट अपडेट हुई, और आज की डेट में 53 फॉर्म कवर होते हैं। 5 बार लिस्ट अपडेट हुई तो जाके 54 फॉर्म इसमें मिनिस्ट्री ने कवर किए हैं। अब इन 53 फॉर्म्स में 2 फॉर्म्स पे लोगों को बहुत इश्यूज आ रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मेरी 2 फॉर्म्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। वो ये कि यहाँ पे लिखा है कि AOC 4 भी कवर हो गया है और MGT 7 भी कवर हो गया है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी से कि AOC 4 और MGT 7 कौन से फाइनेंशियल ईयर का कवर हुआ है? AOC 4 और MGT 7 इन्होंने लिखा कवर हो गया, तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के हमने AOC 4 और MGT 7 कवर किए हैं? जिसकी ड्यू डेट वन आंसर पीरियड के अंदर पड़ेगी सर, जिसकी ड्यू डेट इस पीरियड में फॉल करेगी, राइट? चैट बॉक्स में आई हैव रिसीव्ड द आंसर, समवन हैज मेंशनड 1920, किसी ने लिखा 2021, और समवन हैज मेंशनड ड्यू डेट falling between April to May, not relating to any year, or other answers are 2021, 2021, 2021. 6 से 7 आंसर जो मेरे पास आए हैं वो आए हैं 2021, और 2 आंसर आए हैं 1920। अब हम 2021 की बात करते हैं। AOC 4 और MGT 7 की ड्यू डेट क्या होती है? 30 डेज फ्रॉम द AGM और 60 डेज फ्रॉम द EGM। जनरली AGM होती है अगस्त और सितंबर मंथ। अगर हम सर्कुलर देखें अभी आया है जिसमें 31 जुलाई तक बेनिफिट मिला है, तो ऐसी बहुत रेयर कंपनीज होगी जिन्होंने अप्रैल में अपनी AGM की होगी 2021 के लिए। प्रैक्टिकली सभी की AGM कब होती है? अगस्त सितंबर में, और जो पेंडेमिक चल रहा है इस चक्कर में तो जो अप्रैल में करना भी चाहते होंगे उन्होंने भी नहीं की होगी। तो प्रैक्टिकली ये 2021 के लिए तो रिलैक्सेशन नहीं है। अब बात करते हैं 19-20 में मिनिस्ट्री ने एक रिलैक्सेशन दिया हुआ था कि आप अपनी AGM कर सकते हो 31 दिसंबर तक, मैक्सिमम टाइम था 31 दिसंबर। तो अगर किसी ने 31 दिसंबर को भी AGM की हो अगर, तो उसकी ड्यू डेट क्या आती है? AOC 4 के लिए 30 डेज जो आती है 31 दिसंबर से 30 जनवरी, MGT 7 के लिए 60 डेज जो आती है फरवरी, जो हमारे पीरियड 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में फॉल ही नहीं करते हैं।
तो प्रैक्टिकली ये रिलैक्सेशन हम नहीं बोल सकते कि 19-20 के लिए या 20-21 के लिए है। एज समवन हैज आंसर्ड, दीपक जैन जी ने किया है, those falling between the April to May not relating to any particular year। Exactly, सिर्फ उन्हीं कंपनीज को, उन्हीं फॉर्म को रिलैक्सेशन मिलेगा जिनकी ड्यू डेट अप्रैल से मई के बीच में फॉल कर रही है। और वो किस केस में फॉल करेगी? वो उसी केस में फॉल करेगी जिस कंपनी ने अपनी एजीएम फरवरी या मार्च मंथ में जाके की है। सो सिर्फ उन्हीं कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने अपनी एजीएम फरवरी या मार्च मंथ में किया है। उन्हीं की AOC 4 MGT 7 की ड्यू डेट हमारी अप्रैल और मई मंथ में फॉल करेगी। और फरवरी और मार्च में आपने अगर एजीएम किया है तो बहुत क्लियर है कि आपने कंपनी लॉ का डिफॉल्ट किया है सेक्शन 96 का, बिकॉज सेक्शन बोलता है 96 कि आपको 30 सितंबर तक एजीएम करनी है। आरओसी के पास पावर है 90 दिन का एक्सटेंशन देने की, मैक्सिमम 31 दिसंबर। इस साल मिनिस्ट्री ने अपने आप ही 31 दिसंबर कर दिया था, तो 31 दिसंबर के बाद तो कोई एक्सटेंशन भी नहीं था हमारे पास। 31 दिसंबर के बाद हमारे पास कोई एक्सटेंशन भी नहीं था। तो प्रैक्टिकली जिस कंपनी ने एजीएम के सेक्शन का डिफॉल्ट किया है, एजीएम के पीरियड का डिफॉल्ट किया और फरवरी या मार्च में जाके अपनी एजीएम किया है, उन्हीं को इस सर्कुलर का बेनिफिट मिलेगा और किसी को इस सर्कुलर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब किसी ने मेंशन किया, प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू पॉसिबल कॉल इन एजीएम इन मार्च। सर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां बैलेंस शीट्स विद इन टाइम कंप्लीट नहीं होती है। तो जनरली क्या होता है कि बैलेंस शीट्स ये आपकी जाके फरवरी में कंप्लीट हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अब फरवरी में बैलेंस शीट बनी है तो आपकी एजीएम फरवरी के बाद ही होगी, फरवरी में होगी या मार्च में। उन केसेस में आप अपना फॉर्म फाइल कर सकते हो 31 जुलाई तक विदाउट एडिशनल फीस। बट डेफिनेटली वहां आपका सेक्शन 96 का डिफॉल्ट हो चुका है, वो एजीएम के सेक्शन का डिफॉल्ट तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। Someone has mentioned there can also be Indian company or foreign company who have different financial year ending. There could be delayed AGM of CG approval. हाँ, AGM डिले की है तो वो मैं बोल रहा हूँ, AGM डिले किया तो आपका इशू माना ही जाएगा, डिफॉल्ट माना ही जाएगा। उस केस में आपको 31 जुलाई तक बेनिफिट मिल रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें तो पूछ सकते हैं। मेरे पास चैट बॉक्स में क्वेरी में 3 क्वेश्चन है, मैं पहले उनको ले रहा हूँ। Whether DI3 KYC में भी फाइल विदाउट एडिशनल फीस। सर जो सर्कुलर है ना बहुत क्लियर है। सर्कुलर बोलता है ऐसा फॉर्म जिसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल 21 से 31 मई 21 के बीच फॉल करती है, आप उस फॉर्म को 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल फीस। तो सिर्फ वही फॉर्म की बात करते हैं जो 1 अप्रैल से 31 मई के बीच फॉल करता है। DI3 KYC को जो ड्यू डेट होती है ना, DI3 KYC की ड्यू डेट हमारी होती है 30th सितंबर एवरी ईयर। तो 30th सितंबर तो ऑलरेडी हमारे पीरियड में कवर नहीं हो रहा है। 30th सितंबर तो ऑलरेडी बहुत लेट है, तो DI3 KYC के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। Someone has Supreme Court limitation order impact on the same। लिमिटेशन ऑर्डर का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है प्रैक्टिकली। एक और आंसर, एनुअल रिटर्न ऑफ 18, 19 और 19-20 नॉट येट फाइल, व्हाट इज अ वे आउट फॉर द फाइल से मिनिमाइज द लेट फीस। अगर 18, 19, 19-20 के साथ नहीं फाइल हुई है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है एडिशनल फीस के साथ फाइल करने का आज की डेट में, और कोई रिलैक्सेशन मिनिस्ट्री ने नहीं दिया है। Someone mentions for new incorporated company for which due date falling in this period। सर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए भी क्या होता है कि उसको एजीएम करनी होती है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 20 को कंप्लीट हुआ था तो मैक्सिमम टाइम पीरियड उसके लिए 31 दिसंबर ही था, तो उनके लिए भी प्रैक्टिकली ये कोई रिलैक्सेशन काम नहीं करेगी। और फर्स्ट एजीएम की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी मैक्सिमम 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो मैक्सिमम 31 दिसंबर तक कर सकते थे। हाँ, 31 मार्च के बाद अब आपके पास 30 सितंबर तक का टाइम है, तो जब 30 सितंबर तक का टाइम है तो व्हाई आई विल होल्ड इन द अप्रैल ओनली। तो वहां पे रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है, प्रैक्टिकली रिलैक्सेशन सिर्फ उसी के लिए है जिसने अपनी एजीएम करने में डिले किया है और एजीएम उसने फरवरी या मार्च में जाके की है, उसी को बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अब इसी के साथ आता है कि जो 53 फॉर्म की लिस्ट है उसमें क्या DPT 3 को कोई एक्सटेंशन मिला है जो अभी हमें 20-21 के लिए फाइल करना है। तो जो 20-21 के लिए DPT 3 फाइल करना है ना, DPT 3 की हमारी ड्यू डेट होती है 30 जून। अगेन मैं बोलता हूँ सर्कुलर ने कवर किया है 1 अप्रैल से 31 मई तक का पीरियड, तो DPT 3 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में फॉल नहीं करता है, तो DPT 3 की हमारी ड्यू डेट चेंज नहीं होगी। DPT 3 की ड्यू डेट 30 जून ही रहेगी।
हाँ, ऐसा जो भी फॉर्म था जो 1 अप्रैल से 31 मई के बीच फॉल करता है, एग्जांपल दे देता हूं मैं। 13 मार्च को मैंने एक बोर्ड में एक शेयर होल्डर मीटिंग करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। 13 मार्च को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू फाइल विद आरओसी विद इन 30 डेज इन एमटीटी 14। अब एमटीटी 14 की ड्यू डेट थी 14 अप्रैल, जो मैं फॉल कर रही है मेरे पीरियड में 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में। उस केस में वो एमटीटी 14 में 14 अप्रैल को ना फाइल करके 31 जुलाई तक फाइल कर सकता हूं, मुझे कोई एडिशनल फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर इस पे किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क टू मी। दिस वाज द सेकंड रिलैक्सेशन गिवन बाय द मिनिस्ट्री। अब मैं आता हूं थर्ड रिलैक्सेशन की तरफ। थर्ड रिलैक्सेशन वाज रिलेटिंग टू द चार्ज फॉर्म। थर्ड रिलैक्सेशन दी है वो दी है चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के फॉर्म के रिगार्डिंग। अब चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन का फॉर्म क्या बोलता है? चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के फॉर्म का जो प्रोविजन है वो ये बोलता है कि आपको चार्ज क्रिएट करना, अगर आप कोई चार्ज क्रिएट करते हो, मॉडिफाई करते हो, 120 दिन में आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। 30 डेज में नॉर्मल फीस, नेक्स्ट 30 डेज में एडिशनल फीस, नेक्स्ट 60 डेज में एडवॉल्वमेंट फीस। तो 30 + 60 टोटल 120 डेज। अब यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है सभी से, अगर कंपनी 120 दिन में फेल हो जाती है अपना चार्ज क्रिएशन या मॉडिफिकेशन का फॉर्म फाइल करने के लिए, देन किस अथॉरिटी की अप्रूवल से, किस डिपार्टमेंट के अप्रूवल से 120 दिन के बाद वो फॉर्म फाइल कर सकती है? नाउ दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन, यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स कि अगर 120 दिन में कंपनी नहीं फाइल करती है, किसी रीजन से फेल हो जाती है 120 दिन में चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन का फॉर्म फाइल करने के लिए, तो मैक्सिमम कितने दिन में कंपनी फॉर्म फाइल कर सकती है? मैक्सिमम किस डिपार्टमेंट के अप्रूवल से कंपनी फॉर्म फाइल कर सकती है? सो ये क्वेश्चन बहुत बार इश्यूज आते हैं पर्सनली से कि हम 120 दिन में फेल हो गए फाइल करने को, बट हम 120 दिन में फेल तो हो गए, अब हम क्या करें? हाउ टू फाइल, किस डिपार्टमेंट की अप्रूवल? तो someone has mentioned RD की अप्रूवल, किसी ने लिखा NCLT और किसी ने लिखा 180 days. My question, by approval of RD in 300 days. Okay, someone has mentioned NCLT. तो हमारे पास ज्यादातर आंसर आए हैं RD की अप्रूवल से या कुछ आंसर आए हैं NCLT की अप्रूवल से। हम 120 दिन के बाद भी चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन का फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर मैं ये कंपनी लॉ के प्रोविजंस की अगर बात करूँ ना, अगर कंपनी लॉ के प्रोविजन हम डिस्कस कर सकते हैं, कंपनी लॉ का सेक्शन 77 बोलता है एवरी कंपनी हैव टू फाइल फॉर्म रिलेशन टू द चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन within 180 days, sorry, within 120 days from the date of creation or modification of charge. तो जो चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन का फॉर्म है वो हमें 120 दिन चार्ज क्रिएट करने के 120 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है। If company fails to file such form within 120 days, अगर कंपनी 120 दिन में फाइल नहीं करती है, then it will be considered as a non-compliance और कंपनी के पास कोई पावर नहीं है 120 दिन के बाद फाइल करने की। तो 120 दिन के बाद चाहे वो हम बोल सकते हैं 120 दिन के बाद चाहे वो RD हो, ROC हो, NCLT हो या MCA हो, किसी भी डिपार्टमेंट के पास पावर नहीं है कि जो हमें अलाउ कर दे 120 दिन के बाद चार्ज का फॉर्म फाइल करने के लिए। तो कोई भी डिपार्टमेंट हमें चार्ज का फॉर्म फाइल करने के लिए 120 दिन के बाद अलाउ नहीं कर सकता। चार्ज का फॉर्म फाइल करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो है 120 डेज। तो पहले हमें इसी चीज पे क्लियर होना जरूरी था, इसलिए मैंने प्रोविजन डिस्कस किया। बिकॉज एज यू कैन सी, हम जब डिस्कस कर रहे थे बहुत से लोगों का आंसर आया था RD के अप्रूवल से, बहुत सारे आंसर आए थे ROC NCLT के अप्रूवल से। समवन मेंशन डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर। तो प्रैक्टिकली किसी भी डिपार्टमेंट के पास पावर नहीं है कि वो 120 दिन के बाद आपको अलाउ करे चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन का फॉर्म फाइल करने के लिए। 120 दिन निकल गए तो आप नहीं फाइल कर सकते, किसी भी डिपार्टमेंट के पास चले जाओ। अब इशू क्या था? अब हमें पता है पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है। अब किसी का अगर 120 दिन अप्रैल या मई मंथ पे फॉल कर रहे थे और अप्रैल या मई मंथ में लॉकडाउन के कारण, बिकॉज क्या है, चार्ज के फॉर्म पे डायरेक्टर का DSC लगता है, बैंक का DSC लगता है, प्रोफेशनल का लगता है। तो हो सकता है लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण कोई भी एक पर्सन अवेलेबल नहीं और हम फॉर्म नहीं फाइल कर पाए।
तो मिनिस्ट्री ने रिलैक्सेशन दिया। जो ये रिलैक्सेशन था ना, इसकी लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल लिखी इन्होंने। तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके आज डिस्कस करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। पहली चीज, अगर आपके चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के 120 दिन एक्सपायर नहीं हुए हैं 1 अप्रैल 2021 को, तो आपको इस सर्कुलर का बेनिफिट मिलेगा। पहली कंडीशन, योर 120 डेज मस्ट नॉट बी एक्सपायर ऑन द 1 अप्रैल 2021। मतलब अगर आपके 120 दिन 1 अप्रैल को एक्सपायर नहीं हुए हैं, तो 120 दिन की जो काउंटिंग है ना, उसकी काउंटिंग के लिए 1 अप्रैल से 31 मई का पीरियड कैलकुलेट नहीं होगा। आपकी 120 दिन अगर एक्सपायर नहीं हुए हैं, अगर हमारे 120 दिन एक्सपायर नहीं हुए हैं, तो 120 दिन की कैलकुलेशन के लिए आपका 1 अप्रैल से 31 मई तक का पीरियड काउंट ही नहीं होगा। तो मिनिस्ट्री ने ये अच्छी रिलैक्सेशन दी कि अगर आपके 120 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक का पीरियड आपका काउंट नहीं होगा। दैट इज ओके विद एवरीवन, इज ओके विद इट। अब इसमें इशू क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 31 मार्च अगर मेरा 25th डे था, तो 1 जून मेरा 26th डे होगा। अगर 31 मार्च मेरा 25th डे है, तो 1 जून मेरा 26th डे होगा, बिकॉज 1 अप्रैल से 31 मई का पीरियड तो काउंट ही नहीं होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने चार्ज क्रिएट किया था 31 दिसंबर को, सॉरी 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2020 को एक चार्ज क्रिएट किया। 120 दिन मेरे एक्सपायर हो गए हैं 31 मार्च को, और मेरी पहली कंडीशन थी कि मेरे 120 दिन 1 अप्रैल को एक्सपायर नहीं होने चाहिए। मेरे 120 दिन 31 मार्च को एक्सपायर हो गए, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस सर्कुलर का बेनिफिट डिस्कस ध्यान रखने के लिए, बहुत बार होता है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ज्ञान गुरुकुल में। और ज्ञान गुरुकुल में मेरे पास क्वेश्चन ये आया था कि हम कैसे क्लाइंट टू क्लाइंट डिसाइड करें, क्लाइंट टू क्लाइंट आंसर करें कि आपको सर्कुलर का बेनिफिट चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन का मिलेगा या नहीं। तो इसके लिए बहुत सिंपल फंडा मैं बताता हूँ कि हमें चेक करना है कि हमें चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। अगर आपकी चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन अगर आपके चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन की डेट 2 दिसंबर या उसके बाद की है, चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन की डेट अगर 2 दिसंबर या उसके बाद की है, तो आपको डेफिनेटली सर्कुलर का बेनिफिट मिल जाएगा। बिकॉज अगर 2 दिसंबर या उसके बाद आपका चार्ज क्रिएट हुआ है, तो आपके 120 दिन 1 अप्रैल को कंप्लीट नहीं हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू कैलकुलेट द डेज। सेकंड थिंग आती है, बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने इस पे आर्टिकल लिखा या वेबिनार्स भी किए, तो उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर हमारा चार्ज तो 2 दिसंबर के बाद ही क्रिएट हुआ था, बट स्टिल हमें एडिशनल फीस आ रही है। हमारा चार्ज तो क्रिएट हुआ था 15 दिसंबर को, तो हम सर्कुलर में तो फॉल कर रहे हैं, फिर भी हमें एडिशनल फीस पे करनी पड़ रही है। एडिशनल फीस में कोई बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने बोला कि जो ये सर्कुलर है ना चार्ज वाला, इसमें हमें कहीं एडिशनल फीस का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ हमें सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है 120 दिन की कैलकुलेशन का। मतलब 31 मार्च को जो फीस मुझे पे करनी बनती थी ना, वो सेम फीस मुझे 1 अप्रैल से 31 मई तक भी पे करनी पड़ेगी। जस्ट उन्होंने चेंज किया कि 1 अप्रैल से 31 मई तक का पीरियड आपका काउंट नहीं होगा। बस उन्होंने इतना सा बोला कि जो फीस आपकी 1 अप्रैल को देनी बनती थी, सॉरी 31 मार्च को, वो सेम फीस 1 अप्रैल से 31 मई तक देनी पड़ेगी। एग्जांपल, 31 मार्च अगर मेरा 45th डे था, 31 मार्च 45th डे, 45th डे को मेरे को नॉर्मल प्लस एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है। तो 1 अप्रैल से 31 मई तक भी मुझे नॉर्मल प्लस एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। और 26th डे मेरा 1 जून मेरा 46th डे माना जाएगा। उसके बाद मेरी कैलकुलेशन जैसे मेरे को चलती है 120 डेज की वैसे चलेगी। तो दिस इज द सेकंड फेज ऑफ दिस सर्कुलर। अब थर्ड इस सर्कुलर का पार्ट होता है, ये तो हमने डिस्कस किया ऐसी पोजीशन जब हमारा चार्ज क्रिएट और मॉडिफाई हुआ था 1 अप्रैल से पहले। अब ये भी हो सकता है कि मैंने चार्ज क्रिएट और मॉडिफाई किया 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में। अब उस केस में मुझे क्या बेनिफिट है? तो उस केस में मिनिस्ट्री ने बोला 1 अप्रैल से 31 मई के बीच का पीरियड आपका काउंट नहीं होगा। जो आपका फर्स्ट डे काउंट होगा ना 120 दिन के लिए, वो फर्स्ट डे आपका 1 जून माना जाएगा। तो 1 जून आपका फर्स्ट डे काउंट होगा। तो अगर आपने अप्रैल या मई में कोई चार्ज या क्रिएट किया, मॉडिफाई किया, तो अप्रैल या मई में तो कोई एडिशनल फीस देनी नहीं है।
इवन 30 जून तक भी आपके 30 दिन ही होंगे तो 30 जून तक भी आपका एडिशनल फीस नहीं देनी है। दिस इज अबाउट दिस सर्कुलर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने प्रिपेयर किए हैं फॉर जस्ट फॉर द क्लैरिटी। If any company files CHE 1 और CHE 9 during 1st April to 3rd May, हमारा सर्कुलर आया 3rd May को। अगर किसी कंपनी ने 3rd May से पहले 1 अप्रैल से लेके 3rd May के बीच में अपना फॉर्म फाइल कर दिया था, उस पे एडिशनल फीस भी पे कर दी, उस पे एडवांस फीस भी पे कर दी, क्या कंपनी को बेनिफिट मिलेगा इस सर्कुलर में? क्या रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है? तो मिनिस्ट्री ने बहुत क्लियरली लिखा सर्कुलर में, अगर आपने फॉर्म 3 मई से पहले फाइल कर दिया है, फिर चाहे आपने एडिशनल फीस पे की हो या बोल रहा है, आप रिफंड के लिए अलाउड नहीं हो। Whether company can take benefit of this circular for filing of CHE 4 form, ये सर्कुलर जो चार्ज वाला था ना, सिर्फ एप्लीकेबल होता है CHE 1 और CHE 9 पे, और जो 53 फॉर्म वाला लिस्ट थी वो भी, उसमें भी CHE 4 को कहीं कवर नहीं किया, तो CHE 4 के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं सबकी नॉलेज के लिए। 14 फरवरी को अगर मैंने चार्ज क्रिएट किया तो क्या कैलकुलेशन होगी? नॉर्मल केस में क्या होता है, 14 फरवरी से 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 16 मार्च 30 दिन नॉर्मल फीस, 15 अप्रैल 60 दिन नॉर्मल प्लस एडिशनल, 14 जून 120 दिन नॉर्मल एडिशनल प्लस एडवांस फीस। अब एक्सटेंशन के साथ क्या होगा, 16 मार्च 30 दिन नॉर्मल फीस, 31 मार्च मेरा 45th डे है तो नॉर्मल प्लस एडिशनल, यहाँ पे हम 31 मई रीड करेंगे, 31 मई तक 45th डे माना जाएगा नॉर्मल प्लस एडिशनल फीस। 1 जून मेरा 46th डे होगा तो नॉर्मल फीस, 15th जून मेरा 60th डे है तो नॉर्मल प्लस एडिशनल फीस, एंड 14th अगस्त मेरा 120th डे है तो नॉर्मल प्लस एडिशनल प्लस एडवांस फीस। This is about this circular. This is about all exemptions given by the ministry. किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, इतने चैट बॉक्स में एक तो क्वेश्चन आया हुआ है, I would love to answer that. What is the last date of MSME form? MSME की ड्यू डेट होती है 30 days from end of half year. MSME की ड्यू डेट थी 30th अप्रैल। सर्कुलर्स में भी मिनिस्ट्री ने कहीं MSME को नहीं लिखा, उसका पर्पस ये है कि उनका मानना है कि MSME पे कोई फीस तो जाती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कवर नहीं किया। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर डिपार्टमेंट भी रेज नहीं करेगा। One good question is there, where a charge on vehicle loan is also required to register? Yes. कंपनीज एक्ट बोलता है अगर आपने किसी भी एसेट्स पे लोन लिया है तो आपको चार्ज क्रिएट करना है। व्हीकल इज आल्सो एसेट ऑफ द कंपनी, तो आपको इस पे भी चार्ज क्रिएट करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में मेरे पास, आई फाइल फॉर कंपनी एसटीके इन मंथ ऑफ मार्च, देन आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑर्डर फ्रॉम एनसीए, देन नो टाइम लिमिट फॉर एनसीए। सी स्ट्राइक ऑफ के केस में क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है बट स्टिल आई वुड टेकिंग इट। स्ट्राइक ऑफ के केस में मिनिमम 90 डेज होता है डिपार्टमेंट के पास पावर। तो आपने मार्च में फाइल किया है तो अभी तो 90 डेज में ही चल रहा है, स्टिल 90 डेज से ज्यादा भी लग जाते हैं मिनिस्ट्री को इस क्वेश्चन इस स्ट्राइक ऑफ के प्रोसेस में। सो वी हैव डिस्कस ऑल द रिलैक्सेशन गिवन बाय द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ने जो भी हमें रिलैक्सेशन दी है लास्ट 3 मई के सर्कुलर्स के थ्रू, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। यही रिलैक्सेशन है जो इस साल मिनिस्ट्री ने इस पेंडेमिक में कंपनी लॉ में दी है। इस पे किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। वी आर ओपन फॉर द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे, दैट इज सीएफएसएस। वी विल डू वन थिंग, नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स हम सीएफएसएस और डीबीटी का बेसिक डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद वी विल टेक अप द क्वेश्चन आंसर। बिकॉज ऐसा नहीं है डीबीटी एक नया कंसेप्ट है, पर आज की डेट में भी DPT3 पे बहुत सारे इश्यूज हैं। कुछ इश्यूज मैंने नोट डाउन किए हैं, कुछ इश्यूज आप लोग भी पूछ लीजिएगा तो एक कंप्लीट अपना बन जाएगा। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीएफएसएस के बारे में। सीएफएसएस फॉर्म हमें पता है लास्ट ईयर 30th मार्च को मिनिस्ट्री ये स्कीम लेके आया था, कंपनी लॉ फ्रेश सेटलमेंट स्कीम। इस स्कीम में मिनिस्ट्री ने अलाउ किया था आपका कोई भी फॉर्म, कितना भी पुराना फॉर्म अगर पेंडिंग पड़ा है फाइलिंग के लिए, तो आप इस स्कीम के पीरियड में फाइल करो, आपको कोई एडिशनल फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप पे कोई एडजुडिकेशन नहीं होगा, आपको कोई कंपाउंडिंग या कंडोनेशन नहीं करवानी पड़ेगी। कंडीशन, आपने फॉर्म इस पीरियड पे फाइल करना है। सीएफएसएस स्कीम हमारी थी अवेलेबल 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 अप्रैल 2021
2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक हमारी CFSS स्कीम हमारे पास अवेलेबल थी। 1 अप्रैल 2020 to 31 December 2020। Why I'm saying dates again and again, because हमें dates पे बहुत फोकस करना है कि हमारी dates प्रॉपर रहनी चाहिए। तो ये स्कीम थी 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक। स्कीम में लिखा था अगर आपका कोई भी फॉर्म आप अगर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच फाइल करते हो, उसकी कोई भी ड्यू डेट हो, आप कर सकते हो, कोई एडिशनल फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लोगों को आता था, क्या जो ये स्कीम सिर्फ उन्हीं फॉर्म के लिए है जो 1 अप्रैल से पहले फाइल करने थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, स्कीम सभी के लिए थी। ओनली कंडीशन, सिर्फ 2 कंडीशन चेक करनी है। आज की डेट में अगर आपको चेक करना है ना, यू ऑल आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज आई कैन सी 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रेजेंट एट राइट नाउ। तो ऑलमोस्ट आप लोग 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, तो यू आर फेसिंग सीइंग लॉट ऑफ कंपनीज। तो आज की डेट में आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी को, आपकी जो क्लाइंट कंपनी है उसको CFSS फॉर्म फाइल करना है या नहीं करना है। तो आपको उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। पहला, आपको चेक करना पड़ेगा फॉर्म फाइल हुआ होना चाहिए ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट के बाद फॉर्म फाइल होना चाहिए। दूसरा, फॉर्म फाइल हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में। मैंने कोई फॉर्म ड्यू डेट के बाद फाइल किया है बट फरवरी 2021 में फाइल किया है, तो उस फॉर्म के लिए CFSS फॉर्म नहीं जाएगा। बट कोई फॉर्म मैंने ड्यू डेट के बाद फाइल किया है बट वो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में फाइल किया, तो मेरा CFSS फॉर्म जाएगा। एग्जांपल, लास्ट ईयर जो मेरे को फॉर्म फाइल करना था DPT3 31 मार्च 20 का, उसकी ड्यू डेट थी 30 जून 2020। बट अगर मैंने 30 जून को ना फाइल करके 31 दिसंबर को जाके वो फॉर्म फाइल किया है, तो मेरे को स्कीम में रिलैक्सेशन था, मैंने कोई एडिशनल फीस नहीं दिया, बट वो फॉर्म CFSS का पार्ट था, तो मुझे CFSS फॉर्म उसके लिए फाइल करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ फाइलिंग, ये फॉर्म मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था 15 जनवरी को और अब इसकी ड्यू डेट है 30 जून। वी आर इन द मंथ ऑफ जून। तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि मई मंथ में ROC के कौन कौन से फॉर्म हमें फाइल करने हैं, मई मंथ में ऐसे कौन कौन से ROC के कंप्लायंस है जो हमें करते हैं। सॉरी, वी आर इन द मंथ ऑफ जून, तो जून मंथ में कौन कौन से करते हैं। तो अगर कंपनीज लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जून मंथ में कंपनीज को 2 फॉर्म फाइल करने हैं। पहला DPT3 जिसकी ड्यू डेट है 30 जून, जिसमें कोई एक्सटेंशन नहीं किया है। दूसरा है ये CFSS फॉर्म। CFSS फॉर्म हमें 30 जून तक फाइल करना ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म फाइल करना। क्यों इंपॉर्टेंट है, पर्पस क्या है इसका? To seek immunity in respect of related document filed under the scheme. Immunity under scheme shall be provided only those companies who will file CFSS. आपने हो सकता है 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच 10 फॉर्म फाइल किए, पुराने नए, जो ड्यू डेट के बाद फाइल हुए हैं। अब उन 10 फॉर्म के SRN को आपको CFSS फॉर्म में मेंशन करके CFSS फॉर्म डिपार्टमेंट के पास फाइल करना पड़ेगा। अब बिकॉज इसलिए फाइल करना पड़ेगा बिकॉज आपको मिनिस्ट्री ने बेनिफिट दिया था कि आपको उन फॉर्म्स पे एडिशनल फीस नहीं पे करनी पड़ी, आपको डिपार्टमेंट को एडजुडिकेशन या पेनल्टी का नोटिस नहीं भेजेगा, आपको कोई कंडोनेशन नहीं करवानी पड़ेगी। बट अगर आप बोलते हो मैं CFSS फॉर्म नहीं फाइल करूंगा, मैंने स्कीम का बेनिफिट लिया था, मैंने विदाउट एडिशनल फीस मेरे फॉर्म तो फाइल कर दिए थे, बट अब मैं CFSS फॉर्म नहीं फाइल करूंगा, तो इन दैट केस मिनिस्ट्री हैज मेंशन कि अगर आप CFSS फॉर्म नहीं फाइल करते हो तो आपको कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। मतलब नंबर 1, डिपार्टमेंट आपसे एडिशनल फीस की डिमांड कर सकता है। नंबर 2, आपने फॉर्म डिलेड फाइल किया, डिपार्टमेंट आपको एडजुडिकेशन का नोटिस भेज सकता है। नंबर 3, डिपार्टमेंट आपको कंडोनेशन कंपाउंडिंग्स के लिए भी बोल सकता है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप CFSS फॉर्म फाइल नहीं करते हो। CFSS फॉर्म फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर आप CFSS नहीं फाइल करते हो तो आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और आप लाइबल हो जाओगे सारी फीसेस पे करने के लिए, सारी पेनल्टीज पे करने के लिए, और डिपार्टमेंट आपसे सभी फीसेस और पेनल्टीज लेने के लिए भी लाइबल हो जाएगा, कि ओपन हो जाएगा कि वो आपसे ले सकता है। तो इसलिए CFSS फॉर्म फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
एप्लीकेबिलिटी, मैंने अभी बताया आपको, ऐसा कोई भी फॉर्म जो 30 मार्च से 31 दिसंबर के बीच फॉल करता है जो ड्यू डेट के बाद फाइल हुआ है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, अब सीएफएसएस कौन कौन से फॉर्म पे नहीं लगेगा। नंबर, फॉर्म फाइल विद इन ड्यू डेट, अगर आपने कोई फॉर्म ड्यू डेट में फाइल कर दिया, फॉर एग्जांपल डीपीटी 3 की ड्यू डेट थी 30 जून 2020, आपने वो 30 जून 2020 से पहले फाइल कर दिया, तो आपको उसके लिए सीएफएसएस नहीं फाइल करना है। सेकंड, फॉर्म फाइल ऑन और बिफोर 30th मार्च, अगर 30th मार्च से पहले कोई फॉर्म फाइल कर चुके हो तो उसके लिए सीएफएसएस में उसका एसएलएन नहीं जाएगा। और कोई फॉर्म आप 1 जनवरी के बाद फाइल किया अगर आपने, तो उसमें भी सीएफएसएस में भी उसका एसएलएन भी नहीं जाएगा। भाई सीएफएसएस पे लोगों की बहुत क्वेरी है, तो मेरा आज का जो पर्पस है ना, जो वेबिनार का, ये है कि आपका वो प्रोविजन क्लियर होना चाहिए। तो आपके जो डाउट है ना सीएफएसएस पे, प्लीज क्वेश्चन आंसर या चैट बॉक्स में लिखते चलो। जैसे ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है मैं कंटिन्यूएशन में क्वेश्चंस को ले लूंगा। अभी हमने डिस्कस किया इन 3 सिचुएशन में सीएफएसएस नहीं जाएगा, और ऐसे कौन से फॉर्म है जिनका एसएलएन सीएफएसएस में नहीं जाएगा। सीएफएसएस स्कीम के अकॉर्डिंग SH7 अगर इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल का फॉर्म है तो उसका एसएलएन आपको सीएफएसएस फॉर्म में नहीं लिखना है। चार्ज से रिलेटेड कोई भी फॉर्म है, CHG1, CHG4, CHG8, CHG9, इनका एसएलएन भी सीएफएसएस फॉर्म में नहीं लिखना है। ये तो था सर्कुलर में लिखा। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें, जब हम फॉर्म फाइल करने लगे तो 2 फॉर्म के एसएलएन सीएफएसएस नहीं एक्सेप्ट करता है। एक तो MSME 1 फॉर्म, MSME 1 फॉर्म का एसएलएन हमें सीएफएसएस में नहीं देना है, सीएफएसएस फॉर्म MSME 1 का एसएलएन एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा है PAS 6 फॉर्म, PAS 6 फॉर्म का एसएलएन भी सीएफएसएस फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता है। तो SH7 का एसएलएन हमें सीएफएसएस में नहीं देना। CHG1, CHG4, CHG8, CHG9, इनका एसएलएन भी हमें सीएफएसएस में नहीं देना। PAS 6 और MSME, इनका एसएलएन भी स्पेशल में नहीं देना। अब सभी का क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे याद रखें देना या नहीं देना है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, एक इमेज फॉर्म में बनाया है कि कौन से फॉर्म को सीएफएसएस में नहीं देना है। वो मैं राजेश जी से भी शेयर कर दूंगा, और बाकी मैंने अपना नंबर भी चैट बॉक्स में दिया, मुझे मैसेज कर देना, मैं सभी को ज्ञान ग्रुप में ऐड करके उस पर भी वो इमेजेस शेयर कर दूंगा, जो कुछ छोटे छोटे स्मॉल अपडेट्स में रेगुलर बेस पे बनाता रहता हूँ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द डेट ऑफ इवेंट इन सीएफएसएस? जब हम सीएफएसएस फॉर्म बनाते हैं ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वहां पे पूछता है डेट ऑफ इवेंट क्या है। अगर मान लो मैं AOC4 का एसएलएन सीएफएसएस में लिखता हूँ तो एसएलएन से वो प्रीफिल हो जाएगा, बट वहां पे वो पूछता है कि इसका इवेंट डेट क्या है। इवेंट डेट एक बहुत कॉमन है जो सभी पूछते रहे। तो इवेंट डेट के लिए प्रैक्टिकली तो मैंने क्या किया है, जो 76 फॉर्म की एक लिस्ट थी जिसपे सीएफएसएस स्कीम एप्लीकेबल हुई थी, उसमें से कुछ फॉर्म थे एलएलपी के लिए। एलएलपी के फॉर्म्स में तो हमें सीएफएसएस फाइल ही नहीं करना, एलएलपी को सीएफएसएस फॉर्म फाइल नहीं करना। अगर किसी भी एलएलपी ने सीएफएसएस स्कीम का बेनिफिट लिया था तो उन्हें सीएफएसएस फॉर्म नहीं फाइल करना। तो उनके फॉर्म हटाने के बाद बचते हैं 63 फॉर्म्स। मैंने उन 63 फॉर्म्स की एक लिस्ट बनाई है, उनके ड्यू डेट्स, उस इवेंट डेट उसके अंदर मेंशन किया है। इफ यू विल लाइक टू से, मैं वो शीट भी राजेश जी को शेयर कर दूंगा, वो 63 फॉर्म्स की विद इवेंट डेट्स, तो वो ऑल द पार्टिसिपेंट्स के साथ वो शीट शेयर कर सकते हैं। और किसी को नहीं भी मिलता है तो समाज, जैसे मैंने अपना मेंशन किया हुआ नंबर, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं भी शेयर कर दूंगा। तो वो 63 फॉर्म ऐसे हैं जिनके लिए इवेंट डेट्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, हमें याद रखनी पड़ती है। बट इवेंट डेट के लिए फंडा क्या है, जैसे AOC4 है, AOC4 के लिए इवेंट डेट क्या होती है, डेट ऑफ AGM। जैसे आप एग्जांपल देखो, मैंने अपनी स्क्रीन पे दिया है, दिस इज द एक्चुअल डेट ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट। इवेंट एक्चुअल किस दिन अकर हुआ है। कंपनी ने एग्जांपल देते हैं, कंपनी हैज पास्ड द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑन 15 अक्टूबर एंड फाइल द फॉर्म ऑन 20 दिसंबर। तो मतलब इस फॉर्म के लिए सीएफएसएस तो जाएगा बिकॉज़ 30 दिन के बाद फाइल हुआ है। इन सच सिचुएशन द डेट ऑफ इवेंट शैल बी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर डेट ऑफ इवेंट, एक्चुअल डेट ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट। इवेंट एक्चुअली इस डेट को अकर हुआ है, तो ये हमें मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the mention the event date in CFSS for AOC4, MGT7, ADT1? मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, बट सेपरेटली टोटल 63 फॉर्म्स की एक लिस्ट भी बनाई है। What should be the mention event date of AOC4, MGT7? अब इसकी इवेंट डेट क्या होगी?
अब AOC4 और MDT7 और ADT1 ऐसे फॉर्म है जिनकी इवेंट डेट होती है डेट ऑफ AGM, तो मैंने यहाँ लिखा इवेंट डेट फॉर दिस फॉर्म शैल बी द डेट ऑफ देयर AGM। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द इवेंट डेट फॉर DPT3 फॉर्म। अब DPT3 फॉर्म में एक बहुत बड़ा डायलेमा चल रहा है कि इसकी इवेंट डेट 31 मार्च होगी या क्या होगी। हमारा MCA का एक सिस्टम होता है इंक्वायरी फीस स्टेटस, वहां पे भी हमें इवेंट डेट लिखनी पड़ती है। तो इंक्वायरी फीस स्टेटस में जब हम DPT3 के लिए चेक करते हैं ना, तो DPT3 की इवेंट डेट आती है 30 जून। तो DPT3 हम लोगों के लिए भी इवेंट डेट रहेगा 30 जून। DPT3 हमें 30 जून तक फाइल करना पड़ेगा। Next question, if any form filed within time during the CFSS tenure, such SRN needs to be mentioned in the CFSS scheme or not? अब ये क्वेश्चन मेरा आप सभी से अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, अगर मैंने अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में कोई फॉर्म फाइल किया बट वो विद इन टाइम फाइल किया, उसको एक्सटेंड नहीं किया, तो क्या हमें CFSS में उसका SRN डालना पड़ेगा? एक आंसर तो आया नो, not to mention no. So right, तो सभी का आंसर सही है कि हमें ऐसे केस में CFSS में उसका SRN नहीं डालना पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, whether a single company can file multiple CFSS form for one company। अब क्या होता है, एक से ज्यादा हम CFSS फॉर्म फाइल कर सकते हैं क्या? नो सर। CFSS फॉर्म जो है ना हमारा, जस्ट यस सर, जैसे आपने बोला, CFSS फॉर्म हमें लेता है मैक्सिमम 20 SRN। सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी है जहां एक से ज्यादा CFSS अलाउड है फाइल करना, जहां हमें 20 से ज्यादा SRN मेंशन करते हैं। हो सकता है मैंने बेनिफिट लिया हो 35 फॉर्म्स के लिए, मैंने स्कीम के अंदर 35 फॉर्म्स फाइल किए थे और बेनिफिट लिया था, तो ऐसे केस में एक फॉर्म में तो 20 SRN जाएंगे, जो बच गए 20 के बाद उसके लिए हमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मुझे आप सबसे पूछना है, मैंने 15 फॉर्म्स फाइल किए थे इस स्कीम के अंदर, मुझे 15 फॉर्म के लिए बेनिफिट मिला था, बट जब CSS फाइल किया, यस समवन हैज मेंशन सेम क्वेश्चन दीपक जैन जी, कि मैंने CFSS फॉर्म फाइल करते वक्त 15 में से 14 फॉर्म का तो SRN डाल के फाइल कर दिया, बाय मिस्टेक एक फॉर्म का SRN रह गया, अब उसके लिए क्या किया जाए? बाय मिस्टेक मेरा एक फॉर्म रह गया था, मैं 14 का लिख दिया, अब उस एक फॉर्म के लिए क्या किया जाए? क्या मैं सेपरेट फॉर्म फाइल कर सकता हूं? क्या मैं जो पहले फॉर्म फाइल किया था उसको डिफेक्ट करवा के नया फाइल कर सकता हूं, या मैं छोड़ दूं? सी, इसको मैंने प्रैक्टिकली एनालाइज किया इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लोगों के पास आएगा, आप लोगों को भी अभी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी थोड़े दिन में। तो इसमें पहली चीज क्या है कि मैं जो फॉर्म फाइल कर चुका है क्या उसको डिफेक्ट करवा के नया फाइल करूं? तो पहली चीज, ये वाइबल ऑप्शन नहीं है, मिनिस्ट्री इसको डिफेक्ट नहीं करेगी, तो आप डिफेक्ट करा के नया फॉर्म नहीं फाइल कर सकते। दूसरा आता है क्या मैं एक और फॉर्म फाइल कर दूं? जनरली हमने देखा है कि जब हम दोबारा फॉर्म फाइल करने जाते हैं ना बचे हुए SRN के लिए, मिनिस्ट्री की साइट एरर दे देती है कि आपका फॉर्म ऑलरेडी फाइल्ड है, आप ऑलरेडी CFSS फाइल कर चुके हो, तो वो अलाउड नहीं करता है। तो प्रैक्टिकली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उससे एक बार छोड़ दें। आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आप ट्राई जरूर करना नया फॉर्म फाइल करने की, अभी मिनिस्ट्री का सिस्टम नहीं अलाउ कर रहा है, कोई भरोसा नहीं है कब अलाउ कर दे, तो अगर नया अलाउ कर दिया तो हो सकता है एटलीस्ट हम फाइल कर दे तो हमें इम्यूनिटी मिल जाए, बट मिनिस्ट्री का सिस्टम अभी तो अलाउ नहीं कर रहा है। अभी तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो भूल गए वो भूल गए। अब हाँ, जो रह गया उस केस में कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब मैंने 15 फॉर्म्स का बेनिफिट लिया था, एडिशनल फीस भी नहीं दी, पेनल्टी का भी बेनिफिट लिया, CFSS में लिखे सिर्फ 14 SRN, अब जो एक बच गया उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो जो बच गया ना उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि मिनिस्ट्री आपसे उसकी एडिशनल फीस मांग सकती है, आप पे पेनल्टी लगा सकती है, कंडोनेशन कर सकती है। किसी ने मेंशन किया चैट बॉक्स में हम रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करने के लिए सर हमें पहले पुराने वाले फॉर्म को डिफेक्ट करवाना पड़ेगा ROC से, और जनरली ROC डिफेक्ट करेगा, इसीलिए इट्स नॉट दैट पॉसिबल कि वो इसीलिए आप गए और उसने डिफेक्ट कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अभी चैट बॉक्स में भी 2-3 लोगों ने मेरे से पूछा हुआ है और क्वेश्चन आंसर में भी, इज CFSS रिक्वायर्ड टू पे फॉर द DIR3 KYC?
क्वेश्चन आंसर्स में 2 का आया हुआ है कि क्या केवाईसी के लिए भी सीएफएसएस फाइल होगा, और चैट बॉक्स में भी आया, समवन हैज मेंशन डू वी नीड टू फाइल सीएफएसएस फॉर केवाईसी फॉर्म। तो मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि केवाईसी डीआर3 केवाईसी के लिए क्या हमें सीएफएसएस फॉर्म मेंशन करना पड़ेगा? क्या डीआर3 केवाईसी के सीएफएसएस के अंदर डीआर3 केवाईसी का एसएरएन लिखना पड़ेगा कि सीएफएसएस फॉर्म के अंदर क्या हमें डीआर3 केवाईसी का एसएरएन देना है या नहीं देना है? ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, बिकॉज क्या है कि मिनिस्ट्री ने इन पे कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं दी है। तो ये सब डायलेमास प्रोफेशनल के माइंड में अभी भी चल रहे हैं कि अब हम डीआर3 केवाईसी सीएफएसएस फॉर्म में लिखें या नहीं लिखें, बिकॉज डीआर3 केवाईसी के साथ सिचुएशन क्या होती है, डीआर3 केवाईसी क्या है, पर्सन बेस्ड फॉर्म है, कंपनी बेस्ड फॉर्म तो है नहीं। आज हो सकता है मैं 10 कंपनीज में डायरेक्टर हूँ, तो मुझे 10 कंपनीज के लिए डीआर3 केवाईसी फाइल करना पड़ेगा क्या? उन 10 कंपनीज के सीएफएसएस में क्या हमें डीआर3 केवाईसी का एसएरएन देना पड़ेगा क्या? ये एक क्वेश्चन जो सभी के माइंड में ऑलवेज रहता है, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन चलता रहेगा जब तक ये रहेगा। तो इसमें 2-3 सिनेरियो है, जो मैंने 2-3 सिनेरियो जिसमें बनाए हैं, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। सिनेरियो नंबर 1 हो सकता है मैं सिर्फ एलएलपीज में डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर हूं, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर ही नहीं हूं। अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर ही नहीं हूं तो डेफिनेटली उस केस में तो मैं सीएफएसएस फॉर्म मेरा कोई जा ही नहीं रहा है जहां मैं एसएरएन मेंशन करूं, तो उस केस में तो मैं सीएफएसएस में कभी भी केवाईसी का एसएरएन मेंशन कर ही नहीं सकता। दूसरा, मेरे पास दिन तो था पर मैं ना तो कंपनी में डायरेक्टर हूं ना किसी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर हूं, उस केस पे भी मेरा कोई सीएफएसएस नहीं जा सकता। तीसरी सिचुएशन आती है कि मैं 5 कंपनी में डायरेक्टर, तो अब क्या किया जाए? तो इस केस में अभी प्रैक्टिकली मैंने भी ट्राई नहीं किया है, मुझे करना है, बट मैं एक सजेशन सभी को दूंगा, बिकॉज हमें मैक्सिमम उस वे में जाना चाहिए जहां हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो मैं एक सजेशन सभी को दूंगा कि केवाईसी का एसएरएन भी आप सीएफएसएस में मेंशन करो। पहली कंपनी के लिए फाइल करोगे उसमें मेंशन करो और फाइल करो, दूसरी का फाइल कर रहे हो उसमें भी मेंशन जरूर करो। अगर मिनिस्ट्री एरर दे देती है कि आपका ऑलरेडी एसएरएन मेंशन किया हुआ है तो ठीक है, नहीं करेंगे, बट अगर वो अलाउ करते हैं तो जितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो उतनी सभी कंपनीज के सीएफएसएस में डीआर3 केवाईसी का एसएरएन जाने दीजिए, बिकॉज मिनिस्ट्री ने बोला 76 फॉर्म को बेनिफिट मिल रहा है, उसमें केवाईसी भी है, तो हम कैसे बोल दें कि केवाईसी उसमें नहीं लिखना है? हमें क्या जा रहा है, जब हम फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो उसमें 2 एसएरएन अगर ज्यादा भी डालने पड़े तो चल जाएंगे, कोई एडिशनल फीस थोड़ी देनी पड़ रही है। तो व्हाई टू टेक द रिस्क? तो उसके लिए आप केवाईसी का एसएरएन भी मेंशन कर दो। सर डेट ऑफ इवेंट क्या होगा इस केस में? डेट ऑफ इवेंट सर 30 सितंबर होता है केवाईसी का, क्योंकि उसकी ड्यू डेट 30 सितंबर को ही फाइल करनी होती है। तो जिसने तो डीआर3 केवाईसी के लिए आप 30 सितंबर मेंशन करके। सर मेरे सर पिछले लास्ट ईयर इट वाज मई का एक्सटेंड करी थी ना उन्होंने शायद 20। तो लास्ट ईयर भी इसने सितंबर हो गया था, 2019 में था मई, और उसके बाद से 30 सितंबर कर दिया था इन्होंने। तो 30 सितंबर, और अगर पहले उससे मेंशन कर दिया डीआईआर जिसका, उस केस में कुछ फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस केस में तो फाइल करने की, तो उस टाइम के लिए फॉर्म तो था ही नहीं, हमें तो ये भी देखना ना कि फॉर्म 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में फाइल होना चाहिए, मतलब 30 ये चीज सितंबर हमें देखनी है। सर 30 सितंबर 20 से पहले फाइल अगर कर दिया है तो वो एसआरएन इसमें नहीं हाँ। जाना, फिर इसमें नहीं वो एसआरएन भी देखो, अगर 30 सितंबर से पहले अगर 31/20 के लिए किया है तो वो तो ड्यू डेट में ही हो गया, और ड्यू डेट में फाइल हो गया तो हमें एसआरएन मेंशन करना ही नहीं। और सर अभी हमें सिर्फ उन्हीं फॉर्म्स के एसआरएन मेंशन करने हैं जो ड्यू डेट के बाद फाइल हुए। सर अभी आपने वो बताया डीपीटी 3 का 30 जून होगा 20, जो फॉर्म डीपीटी 3 19 वाले भी अभी फाइल करें सीएफएसएस के अंदर। तो 19 वाले भी अभी फाइल किए तो 30 जून 2019 होगी उनकी ड्यू डेट, बट उसमें तो 30 जून 19 डेट होगी, पर वो फॉर्म देखो हो सकता है आपने पिछले 5 सालों के फॉर्म जाके सीएफएसएस स्कीम में फाइल किए हो, तो सबके लिए ड्यू डेट तो उस कंसर्न ईयर की ही लेनी पड़ेगी हमें। जैसे AOC 4 है, मान लो 5 सालों का AOC 4 फाइल किया है, तो हमें देखना पड़ेगा ना 2016 के लिए जो AOC 4 फाइल किया उसमें एजीएम किस डेट को हुई थी, वो हमारी इवेंट डेट होगी उस फॉर्म के लिए। सेम ऐसे डीपीटी 3 अगर 31 मार्च 19 से रिलेटेड है तो 31 मार्च 19 से रिलेटेड है तो उसकी ड्यू डेट तो 30 जून 2019 थी, तो हमें इवेंट डेट में 30 जून 2019 लिखना पड़ेगा। और वो इवेंट वन टाइम वाले की डेट क्या होगी? 2 फॉर्म थे ना वन टाइम वाले का
वन टाइम वाले की जितना मेरे को याद है 2019 में मई या 29 जून थी शब तक। हाँ 2 दिन, एक मैंने दिन का शीट फर्क बनाई था। है, मैं सर शेयर करूंगा, जितना मुझे याद है वन टाइम की डेट थी 29 जून रखी थी उन्होंने, तो एक 29 जून दिन का फर्क था। 2019। एक दिन का फर्क था। हाँ हाँ, तो वो 29 जून 2019 रखी थी उसके लिए उन्होंने। पर वो डेट ऑफ फाइलिंग थी ना, डेट की डेट ऑफ। सर डेट ऑफ फाइलिंग थी, पर डीपीटी 3 में ये डायलेमा चल रहा है, नो डाउट। लोगों का कुछ का बोलना है कि हमें 31 मार्च लेनी चाहिए डीपीटी 3 के लिए, बट हाँ। जब हम एमसी की साइट पे इंक्वायरी फीस में भी चेक करते हैं ना, इंक्वायरी फीस में भी बोलता है इवेंट डेट, वहां पे भी डीपीटी 3 के लिए इवेंट डेट वो 30 जून ही देता है। पर इसमें एक चीज है सर, उसमें 30 जून तो हम कहीं भी मेंशन नहीं करते, जैसे डेट ऑफ रेजोल्यूशन मेंशन करते हैं एओसी 4 में, या हर जगह डेट ऑफ एजीएम की डेट मेंशन करते हैं ना, ऑथराइजेशन टू साइन, रेजोल्यूशन कब पास हुआ बिल्कुल। फॉर्म फाइल करने के लिए। तो उस केस में 30 जून तो डेट थी, जैसे 29 जून। हाँ सर, बहुत सारे ऐसे फॉर्म, देखो बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनके अंदर रेजोल्यूशन आप की डेट डेट मेंशन आएगी नहीं करते हो, नहीं, जैसे कि DIR3 केवाईसी, DIR3 केवाईसी में कहीं डेट नहीं मेंशन करते हैं। हाँ तो वो ईयर के हिसाब से चलते हैं। अगर जून के अंदर हाँ। हमने डेट ऑफ रेजोल्यूशन उसमें डाली है 24 जून 2019, जो फॉर्म हमने सीएफएस के टाइम में फाइल किया 2019 में, तो उसमें डेट ऑफ इवेंट में 24 जून डालना पड़ेगा कि 30 जून डालना पड़ेगा? 30 जून डेट ऑफ इवेंट नहीं है, वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था, वो सेपरेट चीज थी, वो डेट ऑफ इवेंट नहीं। इसीलिए सर वो तो इस क्लैरिफिकेशन के लिए ना मैंने 63 फॉर्म की पूरी एक शीट बना दी है, ताकि कंफ्यूजन ना आए। आई विल शेयर विद राजेश जी एंड ऑल ऑफ यू, ताकि हमें वो क्लियर हो जाए चीजें। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाँ, भी यस ये सर। कि जो 2019 वाले फॉर्म है बीपीटी 3, हाँ जी। तो उसमें एक में 29 जून मेंशन करें और एक में 30 जून मेंशन। हाँ, वन टाइम के लिए 29 में और 29 जून, और दूसरों के लिए करंट ईयर के लिए 30 जून 20। यस सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें सीएफएसएस फाइल करने के लिए कोई बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। तो सीएफएसएस फॉर्म के लास्ट में लिखा है, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑथराइज्ड टू फाइल दिस फॉर्म, ऑथराइज्ड टू साइन दिस फॉर्म। अगर आपने कोई कंपनी में जनरल रेजोल्यूशन साइनिंग का नहीं पास किया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली एक सेपरेट बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उसको ऑथराइज करना पड़ेगा। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का ये क्वेश्चन आता है, whether there is any option in MCA login ID which can provide the list of all such form which CFSS is required to file। सभी का रहता है कि अब हमने बहुत सारी कंपनीज की एनुअल फाइलिंग कर दी है, बहुत सारी कंपनीज के फॉर्म फाइल किए हैं, अब हम कैलकुलेट कैसे करें, कैसे ढूंढे कि कौन सा फॉर्म CFSS में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। क्या मिनिस्ट्री की साइट पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कंपनी वाइज हम चेक कर ले और हमें लिस्ट मिल जाए? तो मिनिस्ट्री की साइट पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एज अ प्रोफेशनल हमें ही उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच हमने कितने फॉर्म फाइल किए। फिर उस लिस्ट में हमें बाइफिकेट करना पड़ेगा, इसमें से ऐसे कौन से फॉर्म है जो ड्यू डेट के बाद फाइल हुए, देन वी विल एबल टू गेट द लिस्ट। क्वेश्चन आता है whether there is any fees for the CFSS form। CFSS फॉर्म की कोई फीस नहीं है, नील फीस है। अब ये क्वेश्चन है डीपीटी 3 का, इफ कंपनी हैज फाइल्ड डीपीटी 3 फॉर 19 जून 20 के लिए 30 जून की जगह 31 दिसंबर तक, क्या उसका एसएनएन देना है? यस। अगर डीपीटी कोई भी फॉर्म ड्यू डेट के बाद फाइल हुआ है बट 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच फाइल हुआ, तो उसका एसएनएन देना ही पड़ेगा। अगर डीपीटी 3 का एसएनएन एग्जांपल लिया मैंने कि लिखना भूल जाते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो कॉन्सिक्वेंसेस ये है, ये माना जाएगा कि आपने डीपीटी 3 आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया है, आरओसी आपको कंडोनेशन भी बोल सकता है, एडजुडिकेशन भी बोल सकता है, और आपसे एडिशनल फीस भी मांग सकता है। एग्जांपल एक और लिखा है, कंपनी ने एजीएम 15 सितंबर को होल्ड की थी, एओसी 4 फाइल किया 20 अक्टूबर को एंड एमजीडी 7 फाइल किया 21 नवंबर को, जो आफ्टर 30 डेज और 60 डेज है, तो क्या इनका एसआरएन देना है? द आंसर विल बी यस, इनका एसआरएन हमें देना पड़ेगा। सीएफएसएस फॉर्म इज द एसटीपी फॉर्म, आप फाइल करोगे और अप्रूव हो जाएगा। अब आता है whether any immunity certificate shall be issued by the ROC filing of the form। ROC yes, जब ये फॉर्म फाइल करोगे ना, आपकी मेल आईडी पे एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट आएगा, उसमें लिखा आएगा किस किस फॉर्म और एसएनएन के लिए आपको इम्यूनिटी मिली है। हाउ टू चेक द कंपनी विल गेट द इम्यूनिटी और नॉट फॉर अ स्पेसिफिक एसआरएन, जो आपके इम्यूनिटी सर्टिफिकेट आएगा ना, उस पे एसआरएन लिखे होंगे कि आपको उसके लिए इम्यूनिटी मिली है या नहीं मिली है। These are the some questions on the CFS। अब 2-3 चैट बॉक्स में आई थिंक क्वेश्चन है, मैं पहले उन्हें ले लेता हूँ। Company incorporated on 2nd January 2019, not filed 20A, neither bank account open. Now want to strike off whether it is mandatory to open bank account, transfer capital। First thing,
20A फाइल करना मैंडेटरी है स्ट्राइक ऑफ से पहले। स्ट्राइक ऑफ अगर आप करवाना चाहते हो तो 20A फाइल करना मैंडेटरी है। बट ये जरूरी नहीं है कि बैंक अकाउंट ओपन हो। आप सब्सक्रिप्शन मनी दिखा सकते हो कि कैश में आ गई थी, सब्सक्रिप्शन मनी आप कैश में रिसीव दिखा सकते हो और उसकी रिसीव कैश रिसीव बना के लेटर बना के आप 20A में लगा के फाइल कर दो। 20A में कहीं भी नहीं लिखा कि बैंक स्टेटमेंट लगाना मैंडेटरी है, तो बैंक अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी नहीं है, बट 20A फाइल करना मैंडेटरी है स्ट्राइक ऑफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी स्कीम फॉर द कंपनीज हु हैज बीन scrapped from the ROC record? In case they are revived through court proceedings, will they liable to pay penalties for non-filing? Yes. अगर आपकी कोई कंपनी ROC ने स्ट्राइक ऑफ कर दी थी, उसको आपने रिवाइव करवाया, तो आपको रिवाइव करवा के जहां से जिस साल से आज तक की आपकी फाइलिंग नहीं हुई है सभी फाइलिंग्स करनी पड़ेगी और सभी पे जो एडिशनल फीस बनती है पे करनी पड़ेगी। Next question, AOC4 and MGT7 filed with some wrong data. Want to file form with correct data. How to get defect? Defect कराने के लिए आपको ROC को अप्रोच करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन, कुछ एफिडेविट्स ROC को देने पड़ेंगे, उसके बाद ROC सेटिस्फाइड होगा तो अलाउ करेगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगा। रिसेंटली मैंने 3-4 मैटर्स करवाए थे, तो अगर आपको कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है तो यू कैन अप्रोच टू। What will be the date of event in case of AOC5? AOC5 जो हमें फाइल करना होता है वो 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग में फाइल करना होता है, तो बोर्ड मीटिंग की जो डेट होगी ना वो हमारी ड्यू डेट होगी, इवेंट डेट होगी AOC5 के लिए। सम क्वेश्चन इज देयर इन द चैट बॉक्स, since the date of file any particular form was extended, why would be deemed delayed and why necessary to file CFSS? See sir, जो हमने बेनिफिट लिया था एडिशनल फीस ना पे करने का, वो CFSS स्कीम के अंदर ही लिया था और CFSS स्कीम में स्पेसिफिकली लिखा था कि आपको इम्यूनिटी तब भी मिलेगी जब आप ये फॉर्म फाइल करोगे। तो अब ये नेसेसरी है या अननेसेसरी है ये डिपेंड नहीं करता है, मैटर नहीं करता है। जब स्कीम आई थी उस टाइम इस स्कीम में लिखा था, तो आपको CFSS फाइल करना पड़ेगा, नहीं फाइल करते तो आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। Since the government extended date of file, there should be no delay to buy CFSS. Same time extend now for COVID. See sir, आप बोल रहे हो गवर्नमेंट ने टाइम एक्सटेंड कर दिया था, बट गवर्नमेंट ने ही तो वो स्कीम लेके आई थी ना CFSS स्कीम से ही टाइम एक्सटेंड किया था, CFSS स्कीम में ही लिखा था CFSS फाइल करना, तो आपको फाइल करना पड़ेगा। इस बार जो रिलैक्सेशन दी है वो अप्रैल और मई मंथ के लिए है, उसमें कहीं ऐसे फॉर्म की बात नहीं की, तो वहां नहीं लिखा इसलिए नहीं फाइल करेंगे, बट जो लॉ है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। आप नहीं फाइल करोगे तो कोई इशू नहीं है, बट इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। यू आर ओपन टू पे द पेनल्टीज एंड एडिशनल फीस। If the ROC given approval to the withdrawal, the DR12, but the form was not deactivated from the record, please advise. सर अगर ROC ने अप्रूवल दे दिया है तो वो अपने रिकॉर्ड में डीएक्टिवेट करेगा, आपको मेल आ जाएगा। अगर आपको मेल नहीं आया, डीएक्टिवेट नहीं हुआ है, तो मतलब ROC ने अभी तक उस पे एक्शन इनिशिएट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, list of form file can be obtained by logging into the portal. After logging in, show the list of the name of the company with SIN number. सर लिस्ट ऑफ फॉर्म आप ये तो देख सकते हो लॉगिन करके इस लॉगिन आईडी से कौन कौन से फॉर्म फाइल हुए हैं, बट आपको डायरेक्टली ऐसी कोई लिस्ट नहीं मिलेगी कि आपने क्लिक किया और आपको मिल गया कि ये 10 फॉर्म है जो आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किए थे बट CFSS में फाइल किए थे। हाँ, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, आपको लिस्ट मिलेगी कि इस लॉगिन आईडी से कितने फाइल हुए हैं। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप 100 कंपनीज के लिए वर्क कर रहे हो, आपने 100 कंपनीज के फॉर्म उस लॉगिन आईडी से फाइल किए हैं, तो वो 100 कंपनीज के फॉर्म एक साथ दिखेंगे, आपको उनको बाइफिगरेट अलग अलग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, someone has asked how to regularize company under strike off. सर कंपनी स्ट्राइक ऑफ से रिवाइव करवाना एक अपने आप में प्रोसेस है, कंप्लीट स्टेप्स है, वो डेफिनेटली अभी इस सेमिनार में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए तो हमें सेपरेटली 1 घंटा 1.5 घंटा चाहिए डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट CFSS जब हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस 10 to 15 मिनट्स में लूंगा DPT3 पे डिस्कस करने के लिए। उसके बाद किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई विल डेफिनेटली टेक अप ऑल दोस क्वेश्चन। DPT3 फॉर्म ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, जनवरी 2019 में एक नया कंसेप्ट आया था DPT3 फॉर्म, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर नोट कंसीडर एज डिपॉजिट। इस सेक्शन में डिपॉजिट की डेफिनेशन क्या बोलती है? डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन। ये पढ़ के ये तो क्लियर है, कंपनी कोई भी लोन लेती है, कोई भी, वो लोन
डिपॉजिट माना जाता है। बट इंक्लूड कुछ नहीं होता है, रूल 3 में दिया गया है, रूल 2 में डिपॉजिट में दिया कि कुछ लोन्स को डिपॉजिट नहीं मानेंगे, बट जनरली एवरी लोन इज डिपॉजिट, बट कुछ लोन्स को हम एग्जम्प्टेड डिपॉजिट मानेंगे, डिपॉजिट तो मानेंगे। फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से अगर आप कोई लोन लेते हो तो वो आपका एग्जम्प्टेड डिपॉजिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ देती है तो वो एग्जम्प्टेड डिपॉजिट है। अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कुछ लेते हो, तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ लेते हो, तो वो आपका एग्जम्प्टेड डिपॉजिट माना जाएगा। बिकॉज जब डीपीटी 3 फॉर्म जब फाइल करते हैं ना, डीपीटी 3 फॉर्म 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डिपॉजिट और एग्जम्प्टेड डिपॉजिट। डीपीटी 3 बोलता है आप अगर डीपीटी 3 फाइल कर रहे हो तो यू हैव टू सिलेक्ट कि आप डिपॉजिट के लिए फाइल कर रहे हो या पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट के लिए फाइल कर रहे हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, हमें क्या पता है कंप्लीटली कि क्या डिपॉजिट है और क्या पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट है। जितने भी लोन लेने अलाउड है कंपनी लॉ में, जो डिपॉजिट की डेफिनेशन में जितनी भी जगह से लोन लेना अलाउड है, जो अलाउड है वो सब तो माने जाएंगे पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट। जो अलाउड नहीं है वो माने जाएंगे डिपॉजिट। इसी पे एग्जांपल लेते हैं, प्राइवेट कंपनी कहां से लोन ले सकती है। अब क्वेश्चन आता है प्राइवेट कंपनी कहां से लोन ले सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज क्या इंडिया में 65 to 70% कंपनीज तो प्राइवेट कंपनीज है, एंड वी चार्टर्ड अकाउंटेंट आर वर्किंग फॉर लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज। और ये क्वेश्चन हमें रेगुलर डे टू डे प्रैक्टिस में भी फेस करना पड़ता है कि प्राइवेट कंपनी कहां से लोन ले सकती है। तो अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी कहां से लोन ले सकती है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। फर्स्ट, डायरेक्टर फ्रॉम इट्स ओन फंड। प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से लोन ले सकती है अगर वो उसके ऑन फंड से है तो प्राइवेट कंपनी इज अलाउड टू टेक लोन फ्रॉम द डायरेक्टर इफ इट इज फ्रॉम देयर ऑन फंड। सेकंड, प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन ले सकती है। थर्ड, प्राइवेट कंपनी क्या शेयर होल्डर से लोन ले सकती है? The answer will be yes. प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से लोन ले सकती है। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा आता है, प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से कितना लोन ले सकती है? Anyone can answer. प्राइवेट कंपनी कितना ले सकती है? किसी ने लिखा 60% और 100%। ओके, प्राइवेट कंपनी कितना लोन ले सकती है? मिनिस्ट्री ने एक एग्जम्पशन दी थी 5 जून 2015 को। 5 जून 2015 को एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया था प्राइवेट कंपनी के लिए कि प्राइवेट कंपनी को अगर 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम के बराबर अगर लोन लेना है शेयर होल्डर से, वो ले सकती है। 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम जितना लोन आपको लेना अलाउड है। अब मेरा क्वेश्चन है, 100 से ज्यादा लेते हैं तो हमें किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? 100% से ज्यादा अगर हम लोन लेते हैं, प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से 100% से ज्यादा लोन लेती है तो क्या ले सकती है? ले सकती है तो किसकी अप्रूवल से ले सकती है? अब जब शेयर होल्डर से लोन लेने की बात आती है ना, 100% से ज्यादा अलाउड है, बट 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है कि कंपनी ने अपने किसी बोरोइंग की रीपेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो, कंपनी में किसी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डिंग नहीं हो, और कंपनी ने ऑलरेडी जो बोरोइंग और है वो पेड अप शेयर कैपिटल बोरोइंग है और जो बॉडी कॉर्पोरेट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप शेयर होल्डर से 100% से ज्यादा लोन ले सकते हो, अदरवाइज अलाउड नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन ले सकती है, डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन ले सकती है, और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर से लोन ले सकती है अप टू 100% विदाउट एनी लिमिट, आफ्टर 100% विद द अप्रूवल ऑफ द after 100% after completion of the conditions। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे भी क्वेश्चंस हैं, मैं भी साथ में डिस्कस करता हूं। अभी किसी का आया, कैन ए प्राइवेट कंपनी टेक लोन फ्रॉम द एचयूएफ ऑफ हिज ब्रदर? सर पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वेदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम द एचयूएफ ऑफ द डायरेक्टर्स। ये एक एचयूएफ है, उसके जो मेंबर है सभी के सभी मेंबर
डायरेक्टर है कंपनी के भी, तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एचयूएफ से लोन ले सकती है? आंसर दिस क्वेश्चन. One person mentioned no, one mentioned yes. Any other views? We are 200 persons are here, तो 10 से 20 आंसर तो आ सकते हैं. Only HUF plus. Sir, HUF cannot be a shareholder. Right, HUF cannot be shareholder directly, but it can be a shareholder through Karta. But it should be issued in the name of the company. HUF के ब्याह पे, हाँ, HUF के ब्याह पे कर्ता shareholder बन सकता है. केवल the benefit will go with the HUF, but shareholder जो नेम आएगा वो कर्ता का आएगा. हाँ. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एग्जांपल कि सभी मेरे डायरेक्टर्स जो है वो HUF के भी मेंबर है, तो क्या उस HUF से लोन ले सकते हैं? अभी मैंने डिस्कस किया था प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर से लोन ले सकती है, HUF डायरेक्टर नहीं है. शेयर होल्डर से ले सकती है और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से. HUF रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करता है. HUF के मेंबर रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, बट HUF कभी भी रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है. एज HUF रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है, तो हमें HUF से लोन लेना प्राइवेट कंपनीज को अलाउड नहीं है. एक ही कंडीशन में ले सकते हैं जब HUF शेयर होल्डर हो, मतलब HUF के बिहाफ पे शेयर होल्डिंग कर्ता ने होल्ड की हो. इस केस में हम मानेंगे कि हमारा HUF शेयर होल्डर है, सिर्फ उसी केस में हम ले सकते हैं लोन फ्रॉम द HUF. अदर केसेस में लोन फ्रॉम द HUF अंडर कंपनीज एक्ट इज नॉट अलाउड. अगर आप ले लेते हो ना HUF से लोन, तो वो आपका डिपॉजिट माना जाता है, कभी भी वो लोन नहीं माना जाता. तो जो क्वेश्चन था राकेश जी का, कैन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम द HUF हिज ब्रदर, तो इसका क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नो है. हम तो बोल रहे हैं डायरेक्टर की HUF से नहीं ले सकता, तो डायरेक्टर के ब्रदर की HUF से लेना तो बहुत दूर की बात है. इसी पे कुछ क्वेश्चन है, कैन ए प्राइवेट कंपनी टेक अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम द स्टाफ? स्टाफ मेंबर से आप लोन नहीं ले सकते, ना ही वो आपके डायरेक्टर है, ना ही वो आपके शेयर होल्डर है, ना ही वो रिलेटिव है. तो अगर उनसे लोन लेते हो तो वो आपका डिपॉजिट बन जाएगा, और गलती से अगर प्राइवेट कंपनी में डिपॉजिट बन गया ना, बहुत हैवी पेनल्टीज है. नेक्स्ट आता है HUF is relative of director. HUF is never a relative of director. HUF के मेंबर डायरेक्टर के रिलेटिव है, बट HUF कभी भी रिलेटिव नहीं है. सो जो ये प्रोविजन अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राइवेट कंपनी सिर्फ डायरेक्टर से लोन ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकती है, शेयर होल्डर से ले सकती है. हाँ, बैंक, NBFC, अदर कॉर्पोरेट से वो लेना अलाउड है. अब कुछ क्वेश्चन है. अब ये बिल्कुल सिंपल एक टेबल बनाई है मैंने सबके बेनिफिट के लिए. टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ पर्सन टू हुम कंपनी कैन एक्सेप्ट, कि किससे ले सकती है और किससे नहीं ले सकती. शेयर होल्डर से, यस, शेयर होल्डर से ले सकती है अप टू 100% ऑफ बिड ऑफ शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विदाउट एनी कंडीशन, मोर देन 100% आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ द 3 कंडीशंस. डायरेक्टर एंड रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से ले सकती है, कंडीशन उनका ऑन फंड होगा. एम्प्लॉइज के लिए जो भी आप स्टाफ वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे, उस पे एक कंडीशन है जो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ. ओपन एंडली मैंने बोला था नो, बट यहाँ पे एक कंडीशन में ले सकते हो, यस, कैन एक्सेप्ट अप टू द एम्प्लॉइज एनुअल सैलरी and there should be a contract of employment with the company in the nature of non interest bearing security. Employee से आप ले सकते हो maximum up to his annual salary. Any other individual? No, किसी other individual से नहीं ले सकते. Proprietorship firm, डायरेक्टर की proprietorship firm से लोन ले सकते हैं क्या? The rider is the fund should be a proprietor's own funds. हाँ, प्रोप्राइटर, प्रैक्टिकली प्रोप्राइटरशिप फर्म से हम लोन तभी ले पाएंगे जब माना कि डायरेक्टर और प्रोप्राइटर सेम है, बट कंडीशन की उसका ओन फंड होना चाहिए. HUF से नहीं एक्सेप्ट कर सकते, अभी हमने बात की. पार्टनरशिप फर्म से भी डायरेक्टर की हम लोन नहीं ले सकते. माना 2 डायरेक्टर है कंपनी में, वही दोनों शेयर होल्डर है, उन्हीं की एक पार्टनरशिप फर्म है, हम उनसे लोन लेना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म से हम नहीं ले सकते. और पार्टनरशिप फर्म से जो लोन लेंगे
वो हमारा इंटर कॉर्पोरेट लोन भी नहीं माना जाएगा। इंटर कॉर्पोरेट लोन दूसरी कॉर्पोरेट से लेना अलाउड है, कंपनी से लेना अलाउड है, बट पार्टनरशिप फॉर्म से भी हम लोन नहीं ले सकते। एनी कंपनी यस, बैंक यस, ट्रस्ट यस, आउटसाइड इंडिया यस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यस, एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यस, इनसे हमें लोन लेना अलाउड है। तो ये सब कुछ है जिनसे हमें लोन लेना अलाउड है। अब डीपीटी पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, 10 मिनट में लूंगा उनको डिस्कस करने के लिए। उसके बाद अगर किसी के क्वेश्चन आंसर होंगे तो आई विल डिस्कस दैट। व्हाट आर द ड्यू डेट? ड्यू डेट वेरी क्लियर है, 30th जून। इन विच केसेस ऑडिटर सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से केसेस में हमें ऑडिटर सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है? Deposits have been accepted within the definition of deposits. जब हमने डिपॉजिट लिए हैं तब हमें ऑडिटर सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। मतलब इसको जनरल बोले, ऑडिटर सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी ओनली इन केस रिटर्न ऑफ डिपॉजिट इज फिल्ड। मतलब जब हम फॉर्म पर फाइल करते हैं ना, जब रेडियो बटन 2 और 4 में से किसी एक पे सिलेक्ट करते हैं, तब हमें ऑडिटर सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। Whether DPT3 is required to certify the professional? Answer is no. Is it a STP form? No. DPT3 हमारा STP form नहीं है, चेकिंग रूट से अप्रूव होता है। What is the applicability? There are the some companies जिन पे DPT3 applicable नहीं होता। गवर्नमेंट कंपनी नंबर 1, गवर्नमेंट कंपनी पे DPT3 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता। बैंकिंग कंपनी पे DPT3 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता, NBFC पे नहीं होता, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे DPT3 एप्लीकेबल नहीं होता। If a company does not have any outstanding amount as on 31st March, is the e-form required to be filed? The answer will be no. नील के केस में DPT3 फाइल नहीं होगा। DPT3 तभी फाइल होगा जब 31 मार्च को कुछ लोन या एडवांस है बुक्स में। अब एक क्वेश्चन आता है, कंपनी का 31 मार्च 20 को जो लोन की वैल्यू थी 31 मार्च 21 को सेम है, तो क्या कंपनी को DPT3 फाइल करना पड़ेगा? हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई लोन नहीं लिया, ड्यूरिंग द ईयर कोई एडवांस नहीं है। जो मेरा लोन 31 मार्च 20 को खड़ा था वही 31 मार्च 21 को खड़ा है, तो क्या हमें DPT3 फाइल करना पड़ेगा? 1% has answered as no. सर अगर वो विवेक जी, अगर वो लोन की डेफिनेशन वाले में फिट बैठ जाएगा, देन वी शुड रिपोर्ट। एडवांसेस में अगर वो आ जाता है तो उसके डेफिनेशन के हिसाब से कि लोन में तो वो लोन तो है, मैं बोल ही रहा हूँ वो लोन है। हाँ। तो फाइल करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई लोन लिया हो। सो द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ड्यूरिंग द ईयर तो हमने कोई लोन लिया ही नहीं है, कोई एडवांस ही नहीं है, तो हमें फॉर्म नहीं फाइल करना। ऐसा नहीं है। आपको अगर 31 मार्च को लोन खड़ा है बुक्स में, चाहे वो सेम हो लास्ट ईयर की तरह, आपको फाइल करना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, कंपनी ने कहीं से लोन नहीं लिया, सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर से लोन लिया हुआ है, तो क्या उस केस में DPT3 फाइल होगा? यस सर। यस, बिकॉज जो कंडीशन हमें याद रखनी है, हमें ये कंडीशन याद रखनी है, 31 मार्च को अगर हमारी बुक में कोई भी लोन है, चाहे 1 रुपए का भी लोन हो या एडवांस हो या किसी से भी लिया हो, डजंट मैटर किससे लिया है, 31 मार्च की डेट में अगर हमारी बुक में 1 रुपए का लोन या एडवांस है, तो हमें DPT3 फाइल करना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि वो किससे लिया है या किससे नहीं लिया है। दिवेश जी एक केस था, दिवेश जी केस आया था मेरे पास, जिसमें क्या था कि कंपनी क्या करती थी, कंपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी के एक डायरेक्टर के फ्रेंड से 2 लाख रुपए ले लिए लॉकडाउन में, और उसको बाद में दिखा दिया जी एडवांस अगेंस्ट साइड है, कि साइड पे कुछ इंटीरियर का काम होना है, तो उसके अगेंस्ट एडवांस है। बट मैंने उसे बोला, मैंने कहा नहीं, आपने ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है, तो इसके लिए हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ये डिपॉजिट आ गया, मुझे इसके लिए जो आपकी एनुअल उसमें जो रिपोर्ट मुझे बनानी, जो ऑडिट रिपोर्ट बनानी, इवन आई हैव टू मेंशन इन दैट। तो व्हाट इज योर एडवाइस सर, क्या सही है मैं, या मेरा ओपिनियन सही है? प्रोफेशनल्स, आप बिल्कुल सही हो, पर जनरली क्या होता है, जब तक फाइनेंशियल्स रेडी नहीं हुए हैं ना जी, उससे पहले अगर मान लो फॉर एग्जांपल क्लाइंट बोलता है कि मैं इसको एडवांस ही दिखाऊंगा,
मैंने लोन की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की, मैंने कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, मैंने कोई लोन एग्रीमेंट भी नहीं किया है, ये तो मैंने किसी गुड्स सर्विसेज के अगेंस्ट एडवांस ही दिया था। तो प्रैक्टिकली अगर देखो बुक्स फ्रीज नहीं हुई है तो आप उसको एडवांस भी दिखा सकते हो। एडवांस के लिए कंडीशन है कि 365 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर 365 दिन से ज्यादा है तो डेफिनेटली डिपॉजिट बन जाएगा, एडवांस नहीं है। पर 365 दिन तक है तो सर एडवांस चल सकता है, बिकॉज वी आर द प्रोफेशनल। वो हमें क्या बोलेगा कि आप तो सोल्यूशन बताओ, मैंने तो ले लिया, आप सोल्यूशन बताओ। तो समटाइम क्या होता है ऐसे टाइम पे वी हैव टू फाइंड आउट सोल्यूशन, कि हम इसे एडवांस में दिखा देते हैं कि इसको डिफॉल्ट ना दिखा के। थैंक यू, थैंक यू। अब someone has question, if any company has no loan or advance whether DPT3 may be filed? नील के लिए DPT3 नहीं फाइल करना, अगर ₹1 का भी है तो फाइल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। Can a private limited company accept loan from the shareholders relative? No, shareholder के relative से लोन लेना अलाउड नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर के relative से अलाउड है। You have mentioned that if loan and advance as on 31st March 2021 is nil, then form is not required file. Please give any circular number if there any. Sir, we don't require any circular. We are having law for the same. DPT3 हम क्यों फाइल करते हैं? क्योंकि रूल 16 में लिखा है, और रूल 16 बोलता है आउटस्टैंडिंग लोन और एडवांसेस। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग है कुछ आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। जीरो कैन नॉट बी आउटस्टैंडिंग इन द लॉ। सो वहां पे रूल में ही लिखा है आउटस्टैंडिंग लोन और एडवांस। तो कुछ आउटस्टैंडिंग है तो हम फाइल करेंगे, आउटस्टैंडिंग नहीं है तो फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इफ लोन फिगर ऑन 20 एंड 21 आर सेम द DPT is to be filed? Yes, ये क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था कि अगर लोन की फिगर सेम भी है तो भी हमें DPT3 फाइल करना ही पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, इज द इंटरेस्ट अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन टू बी रिपोर्टेड? क्या इंटरेस्ट भी रिपोर्ट करना है या सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट? Then my opinion will be the interest as well as the principal amount both need to be reported. Next question, business advance are to be reported in DPT3? बिजनेस एडवांस 365 दिन से कम का है तो नॉट कंसीडर इन डिपॉजिट में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। 365 दिन से ज्यादा है तो आपको डिपॉजिट में रिपोर्ट करना सर उसके पड़ेगा, बट रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। ये 365 दिन से अगर ज्यादा हो जाता है एडवांस को, यस, क्या रेमेडी है? इसने ना दिया ना वो है, 365 दिन के बाद वो डिपॉजिट ही माना जाएगा। 365 दिन के बाद उसके डिपॉजिट माना जाएगा। तो एज ए ऑडिटर आपको DPT3 में भी डिपॉजिट पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी इस डिपॉजिट को दिखाना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा कि कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है। उसका कंपनी के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस रहेगा? कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि डिपॉजिट के रूल का डिफॉल्ट माना जाएगा। तो जो डिपॉजिट के रूल की पेनल्टीज है, 1 सेकेंड, जो डिपॉजिट के वहां एक्सट्री शेयर करता हूं सर। डिपॉजिट के रूल की जो पेनल्टीज है वो ये है, द कंपनी एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन 5000 रुपीस और वेयर द कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू वन फाइन व्हिच मे एक्सटेंड द 500 रुपीस एवरी डे। ये तो कॉन्सिक्वेंसेस है नॉन फाइलिंग ऑफ DPT3 की, कि हमने DPT3 गलत किया है। और जो उस रूल का कॉन्सिक्वेंसेस है कि वो डिपॉजिट बन जाएगा तो वो सेक्शन 73 का ही डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। सर बस उसके अंदर अगर प्रोजेक्ट एडवांस है, कंस्ट्रक्शन है, कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, देन यू हैव अ वेवर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सॉरी सर, सर विद द प्रोजेक्ट एडवांस और सम एडवांस इज अ लॉन्गर पीरियड, देन यू उन्होंने बोला है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के, हाँ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल गुड्स के लिए लिया है तो आपको अलाउड है 365 दिन से ज्यादा, अदरवाइज अलाउड नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है, इफ द लोन इज टेकन ड्यूरिंग द ईयर एंड पीरियड ऑफ 360 डेज इज नॉट कंप्लीटेड देन डू वी नीड टू रिपोर्ट? लोन का और 365 दिन का कोई रिलेशन नहीं है। लोन आपने अगर 31 मार्च को भी लिया है ना तो भी आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। DPT फॉर्म अप्रूवल फ्रॉम ROC मैसेज मैंडेटरी है। DPT3 के अप्रूवल होना मैंडेटरी है, जब तक अप्रूवल नहीं होती वो ROC की स्क्रूटनी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स कस्टमर? यस, सिक्योरिटी डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, बट आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। In some cases, due to trade circle, advance may exceed 365 days, particularly in case of heavy industry. Yes, sir. Like long-term projects, like capital goods, उन cases में आपको 365 days से ज़्यादा allowed है। Next question, I have filed AOC for financial year 1920 in the month of January with no additional fees. Whether SRN may be filled? No, sir. देखो मैंने बार-बार यही चीज बोली थी। आपको चीज क्या याद रखनी है कि आपका फॉर्म 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में फाइल होना चाहिए, और आपने स्पेसिफिकली लिखा है कि आपका फॉर्म जनवरी में फाइल हुआ है, तो आपके फॉर्म का SRN CFSS में नहीं जाएगा।
Now some question are there on the CFSS. Some form were filed in CFSS scheme, but now company B is converted into LLP, so can we file CFSS? No. अगर CFSS फाइल करने से पहले कंपनी LLP में कन्वर्ट हो गई है तो आप CFSS को नहीं फाइल कर सकते हो. Next question. For submitting CFSS under pay fees letter, but actually payment not made due to technical glitch in system and ticket raised in ROC पर resolution paid. CFSS के लिए सर कोई फीस होती ही नहीं है, तो CFSS के लिए पे लेटर पे हमें क्यों क्लिक करना है? CFSS तो डायरेक्टली अपलोड हो जाता है, नील फीस है उसके लिए. Next question are security deposit also be reported in DPT3. This is neither. Yes, security deposit also need to be a report. DPT3 में specific column है उसके लिए. So these are the certain points which we have discussed with all of you. जो आज मेरी presentation का मेरे इसका part था. अब राजेश जी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं जो वैसे स्टिल वी हैव टेकन 50-60 क्वेश्चंस ऑलरेडी. स्टिल अगर किसी के क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली लाइक ऑलवेज वी आर रेडी टू टेक अप दैट. अभी एक क्वेश्चन आया है, एडवांस रिसीव फ्रॉम क्लाइंट बट सप्लाई कुड नॉट बी मेड विद इन 365 डेज बिकॉज़ ऑफ द क्लोजर ऑफ सप्लाई. सर देखिए, मिनिस्ट्री ने इस पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है. अगर आप हैवी इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स में नहीं और 365 डेज से ज्यादा हो गया तो वो डिपॉजिट ही माना जाएगा. आपने सारे क्वेश्चन सर टाइम टू टाइम सॉल्व कर दी ना, इसलिए नो क्वेश्चन इज पेंडिंग. सर इस बेटर रहता है ना जब प्रेजेंटेशन चल रही होती है ना, उस पे पूरा फोकस होता है सभी का, और सेशन भी लाइव रहता है, लोग जुड़े रहते हैं सर. बिल्कुल. तो फिर मेरा हमेशा से आपने देखा ही है, जब मैं चाहे फिजिकल लेता था या कि रेगुलर बेस पे अपने साथ के साथ क्वेश्चंस लेते हैं तो उससे सभी को इंटरेस्ट आता है. बिकॉज कई बार क्या होता है कि वो पॉइंट मिस हो जाता है, जब तक हमारा क्वेश्चन था बाद में हम वो पॉइंट ही भूल जाते हैं, हम नहीं याद रख पाते हैं, तो वहां पे बहुत इश्यूज आते हैं. तो बेटर होता है कि हम साथ के साथ डिस्कस कर लेना, तो 2-3 लोगों के और क्वेश्चंस भी रिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस डेलिब्रेशन एंड resolving Thank you all so the much, sir. issues and question by our member. For a formal vote of thanks, I request Rajiv Kohli ji kindly present a formal vote of thanks. Over to Rajiv Kohli ji. Devesh, it's always a pleasure to have you here in such a nice, elaborate, comprehensive, lucid manner. आपने सारी चीज क्लैरिटी दे दी. जो हमारी रिलैक्सेशन आई थी पिछले साल वाली, इस वाली साल की रिलैक्सेशन आ गई है. बोर्ड मीटिंग्स की हमारा बेसिकली एडिशनल फीस की पेमेंट की रिलैक्सेशन थी, पर से कोई रिलैक्सेशन थी नहीं. और जो इम्यूनिटी का हमने CFSS फॉर्म फाइल करना, दैट इज अ वेरी प्री रेक्विजिट, अदरवाइज सारा और सारी की चीज खराब हो जाएगी. सो यू हैव टू चेक, प्लीज कॉम्प्रिहेंसिव ना के चेक करना पड़ेगा. सिंगल फॉर्म आपने फाइल करना अप टू 20 SRNs. एंड डायरेक्टर KYC का जो है दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज director is a personal interest also is KYC. It is not a company but is interrelated the company also. और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया. थैंक यू वेरी मच. लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन पर्सन नाउ. काफी मुद्दत हो गई अब तो वेबिनार के ऊपर. थैंक यू. डेफिनेटली आई एम आल्सो वेटिंग कि सिचुएशंस ठीक और सब फिजिकली मिले. बिल्कुल सर, थिंग्स आर इंप्रूविंग, सो लेट्स होपफुली विल बी मीटिंग सम टाइम दैट वी कैन नो, बिकॉज़ 2020 में सोचा था कि 21 वुड बी अ बेटर ईयर, बट ये तो उससे भी खराब निकला है अभी तक तो. But actually, with the vaccination and everything, things should improve. And thanks all our team members who have joined us. Thank you very much, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.